Very warm good morning and welcome to our today's session. So I welcome our speaker. Our today's speaker, Mr. Ravish Bhateja, our branch chairman, committee members of Alwar branch of ICAI, my colleagues and my dear students. I, CA Priyanka Arora, Vice Chairman of Alwar branch of ICAI, welcome you all to today's session where we are going to, where Mr. Ravish is going to deliberate on a very interesting topic actually, how to face a CA examination. उफी एग्जाम्स, उफी स्ट्रेस, हमेशा परेशान, कैसे करें इन्हें फेस, राइट? शायद ये एक की नहीं सभी स्टूडेंट्स की कहानी है, पर क्या करें, हर 6 महीने में ये रीत तो निभानी ही है. So, these problems are going on from, generation to generation, it pass on. So today we, started an interactive session so that you can go on with your exams very smoothly. So now I request our chairman, Mr. Amit Agarwal, to welcome our today's speaker and say a few words. See Amit Agarwal, please. Hello. Yeah. Am I audible? Amit, you're audible. मैं आज की लंडन स्पीकर रविश भटेजा जी का, चिकासा चेयरमैन आकाश सिंगल जी का, वाइस चेयरपर्सन प्रियंका जी का, टेक्निकल सपोर्ट रवि जी का और आज के हमारे डियर स्टूडेंट सभी का वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे इस सेमिनार से. आज के हमारे लंडन स्पीकर रविश भटेजा जी का मैं तहे दिल से आभारी हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ समय हमारे अलवर सीए ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए निकाला और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इसी तरह वो हमारे ब्रांच स्टूडेंट्स के लिए अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे. डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से जो आज की सेमिनार है हमारा कि हाउ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सीए एग्जाम, उसमें कुछ बात कहना चाहता हूं. उसमें से ये है कि सब चीज को अगर हम एक तरफ रख दे और एक चीज पर भी फोकस करे, दैट इज द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स या व्हाइल स्टडीइंग. अगर आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन अच्छा है तो यू कैन स्कोर एनीथिंग. So, and for to increase that level of concentration, meditation is the great technique. चाहे 15 मिनट या आधा घंटा आप मेडिटेशन कीजिए एंड इट विल बी रियली बून फॉर योर इन योर एग्जाम्स. और बाकी तो हमारे आज के जो लंडन स्पीकर है वो काफी कुछ बताएंगे ही आपको. उम्मीद करता हूं कि आप बहुत कुछ सीखेंगे. ब्रांच से आप कनेक्ट हो. ब्रांच कोऑर्डिनेटर हमारे जो नरेंद्र जी है, वहां पे अपना नाम या मोबाइल नंबर लिखवाए जिससे कि हम जो भी एक्टिविटीज करवाते हैं आप तक पहुंचे. आप यकीन मानिए हमारी जो मैनेजिंग कमेटी है आप लोगों के लिए काफी कुछ करना चाहती है, काफी कुछ प्लान भी कर रही है. अच्छा, एक चीज और की जो वेबसाइट है आप लोगों के लिए, एक वेबसाइट और डेवलप हो रही है जिसमें कि जो भी आर्टिफिशियल वैकेंसीज है वो और जो प्लेसमेंट्स है जो कि बाकी हमारे जो सीए भाई बंधु है वो आपको बता पाएंगे कि यहाँ पे जॉब वैकेंसी प्लेसमेंट्स के लिए वैकेंसी है अलवर रीजन में ही. तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वेबसाइट पे ही अपलोड हो जाएगा आपको आने वाले समय में. इसी के साथ मैं फिर से सभी जितने भी मेंबर्स हैं उनका धन्यवाद देता हूं. थैंक यू सो मच. Thank you, C. Amit Agarwal, for encouraging our students. वैसे तो our today's speaker need no introduction, as many of you must have already heard about him. But let me give a brief about him. Mr. Ravish Bhateja is a leading name in the emerging field of human resource management and skill building.
He is a leadership expert with wonderful mentorship and a leading businessman as well. He is also a corporate and professional trainer who conduct various workshops for various corporate houses in various areas such as soft skills, people skills, help to build sustainable behavior change, and organizational development. He has a charismatic personality and is deeply passionate in motivating people to take them from good to great. He is soft-spoken person with the magic of motivating any person on this planet, believe me. And I can tell you with my personal experience. As he has trained lakh of professionals till now, including CA, CAs, CMA, and many other management professionals. He is not just a good speaker who has potential to encourage people to know their true worth. He is also a brilliant writer. Some of his famous publications are Changing Role of HRM in the Networked World, Promotions Corporate Ladder, Leadership, the Need and Model in the Contemporary World. You know, I can go on with all the introduction part, but it will cut short our time. So without any further delay, I request Mr. Ravish Bhateja to take over from here. Thank you so much, Priyanka ma'am, for such a dynamic introduction. And first of all, let me express my deep, direct dil se gratitude to this great Alwar branch of CIRC of ICAI, CA Amit Agarwal ji as the Honorable Chairman, Priyanka ji as the Honorable Vice Chairman, Pushp ji as the Secretary, Akash Singhal ji as the SICASA Chairman, Ravi ji as, I won't say the technical support, or the technical wizard, I would sure behind the entire show, the entire management team, and especially the people behind arranging this seminar. Hats off to each and everyone. I know it's definitely not an easy job, and especially to take out time for the interest of our dear students who are going to be the future corporates, the future ambassadors of our great temple, ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. So I really feel indebted and express my gratitude towards each and everyone. And my request so that we can get the maximum out of today interaction. So if we can get those cameras on so that we can have, you know, a great eye-to-eye contact also, that's absolutely okay. Irrespective of the way you are sitting, irrespective of the way wherever you are, maybe you might be in the office, you would be studying, you would be in the home, that's absolutely okay. If you can get those cameras on, let me assure you, the chances of clearing those exams increases. Rest assured, direct dil se. And as Priyanka ji rightly suggested, that, you know, so far as the topic is concerned, how to face CA exams, I don't know how interesting this topic is, especially for the students, because sometimes it makes them feel so nervous from within. But I'm sure, ideally, agar dekha jaye, clearing CA exams is definitely not that big nut to crack, jitna appear hota hai, provided we can take care of these following success mantras, which I would try to unleash in the time which actually has been assigned. So let's get the maximum out of today's interaction. And let me take you through the theme as to how do I plan to take it forward. You might be having some questions in your mind. You might be having something which you wish to ask me. So just scribble it down and feel free to write that in the chat so that in the end, in the Q&A, question and answers, I can take care of that. And I would also be requiring the support of the great management team to help me out in that Q&A and to further share their own expertise as well. Because end of the day, our great students are going to, you know, occupy those same seats one fine day. And that is what even our vision is, that they turn out to be so successful that end of the day, we all are proud that yes, they have been our students, they have been our trainees. And I would also share my email and a contact ID in the end, so that even after today's talk, I know these exams are near.
any more thing that you have to ask me, you have to share, butterflies in the stomach, stress, anxieties, whatever it is, any personal things that you would love to share, please, maybe you can WhatsApp, LinkedIn, Insta, email, whatever. And as soon as possible, I'll get back to you. That's my humble and honest commitment. All right, to get to the groove, how do I clear my CA exams? How do I clear my CA foundation, my CA intermediate, my CA final exams? What are those success mantras? What are those success tips? The very first success mantra that I would love to share on board with the eminent gathering here, with future entrepreneurs here, is taking care of my subconscious mind, because end of the day, my subconscious mind is going to control my conscious mind. And agar dimag hit hai, to banda hit hai. If my mind is working well, I can create magic. That's for sure. The reason as to why a particular student gets a rank, right? The reason as to why a student only clears the exams. And the third situation, unfortunately, the reason as to why a particular friend of mine is unable to clear is because 3 hours, this thing is not in control. Either he gets anxious, cheezein usko aati hain, he forgets them, yeah, somehow he's unable to manage those 3 hours and he's unable to ruin that situation. I'll put across a very simple live example, which I come across every 6 months. Generally, our first paper is on accounts, the very first paper. Kitni baar hua hai? The very first question is supposed to be the toughest. The paper setter wants कि जिसने question number 2 या end से शुरू करा है, होता क्या है? Your subconscious mind gets a ease feeling, एक comfort feeling आती है कि हाँ यार ये वाला question तो मुझे आता है. End question से जब तक वो first question तक पहुंचता है, कहाँ first question में उसकी हालत खराब हो गई होती है शुरू में देख के. But by the time he reaches question number 1, I'm assuming he starts off from the end question approach. पता चलता है question number 1 में भी वो कुछ लिख पाया. And who knows, बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है. शायद उस फर्स्ट क्वेश्चन में जो उसको 1, 2, 3, 4 जितने भी नंबर्स उसको मिल गए, who knows, शायद वो टफ पेपर उसी 1, 2, 3, 4 नंबर ने उसका क्लियर करवा दिया. कितनी बार ऐसा हुआ है हर अटेम्प्ट में कि उसने क्वेश्चन पेपर देखा और उसको लगता ही नहीं है वो सॉल्व कर पाएगा, फिर भी वो पूरे 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहा, कुछ ना कुछ लिखते रहा. वर्किंग नोट्स उसको लगा कि पता नहीं वर्किंग नोट्स के उसको मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बट फिर भी कुछ ना कुछ लिखते रहा. जो उसको आंसर ठीक लगा, कुछ ना कुछ लिखते रहा. और हु नोज, इन द एंड जब पेपर का रिजल्ट आउट हुआ, उसको खाली 40 नंबर चाहिए थे पेपर क्लियर करने के लिए. एंड ही वाज शॉक्ड जब उसने रिजल्ट देखा 50 उसके अकाउंट्स में है. बिकॉज शायद वो ये भूल गया पेपर टफ उसके लिए नहीं था, शायद पेपर टफ सबके लिए ही था. सो हेंस जिसने स्टेप्स कुछ लिखे हैं, जिसने कुछ इवन मिलता जुलता आंसर भी लिखा है, our institute is kind enough to give marks. They're not tough. They don't want to fail anyone. Even they are happy to make future chartered accountants. FCAs, to make future chartered accountants, right? So the fact of the matter is to control our subconscious mind as a very first success mantra. Few suggestions, few tips. Number 1, as our great honorable chairman rightly said, the power of meditation, the power of thinking positive, always, always, always works. I know, in fact, we all understand that you have a time constraint. It might be difficult, but even 5 minutes, closing your eyes, just talking to yourself se mera matlab, I am great enough. I will be able to crack my exams. I will be able to pass with flying colors. They work like magic. Trust me, as a DPS RK Puram passed out, as a graduate from SRCC, this technique has worked wonders from me, including my even postgrads as well. It has helped me crack my any postgraduate exams.
because before these exams, including the examination time, sometimes once I used to have that feeling कि ये particular question tough है, I might not be able to, solve it well. I just used to close my eyes for a couple of seconds, maybe 5 or 10 seconds, breathe in, breathe out, not a Baba Ramdev karne se hoga, but something on the lines of that positivity used to work like magic. It used to help me reignite the passion from within. It used to help me reignite the energy from within. And कहाँ मुझे लगता था वो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, and still I was able to do something. I was able to crack those particular questions because I believed in myself. So as a very first technique of cracking, clearing, successfully passing the CA exams would be taking control of our subconscious mind. I'm assuming we have a writing pad. Please ensure that any great words which you like, just scribble it, and believe me, lifelong it is going to benefit. That is for sure. This 1.5 hours is your lifelong investment. Remember that. But listen very carefully with 100% concentration, dedication, and devotion. The second success mantra, which I would love to share out here with everyone, would be sometimes what happens is I find this particular subject to be tough. इसलिए मेरा माइंड करता है कंफर्ट जोन में जाने का कि मैं 1 घंटे बाद पढ़ लेता हूँ, 2 घंटे बाद पढ़ लूंगा, कल पढ़ लूंगा, अभी भी दिन है, अभी भी टाइम है. So I try to procrastinate. What I mean by procrastination is delaying. Irrespective कि मुझे पता है कि उस procrastination से सबसे ज्यादा खतरा मेरा है. I'm harming myself, but उसके बावजूद भी I keep on procrastinating. I keep on delaying. इसके लिए what I would recommend as one of those practical mantras, practical techniques is remember this. 5, 4, 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1, bingo. Means it's medically proved after 5 seconds, mind picture में आ जाता है and mind games शुरू कर देता है. Mind games से मेरा मतलब negativity. क्या मैं पढ़ पाऊंगा, क्या मैं क्लियर कर पाऊंगा, क्या मैं सक्सेसफुल बन पाऊंगा, will I be able to create magic, will I be able to do it, negative thoughts. And कहते ना खाली दिमाग शैतान का होता है, और ये negative thoughts इतनी आसानी से हमारे दिमाग में आती है. And most of you guys would agree. Anxiety क्या होती है, negativity क्या होती है, fear क्या होता है, stage fear क्या होता है. Basically you are questioning your own abilities. ऐसा क्या हो गया कि स्कूल का टॉपर ग्रेजुएशन ठीक नहीं कर पाया, ऐसा क्या हो गया कि स्कूल एंड ग्रेजुएशन का टॉपर सीए एग्जाम्स में सक्सेसफुल नहीं बन पाया. सेल्फ डाउट, कई बार अपनी ही एबिलिटीज के ऊपर अ बिग 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 क्वेश्चन मार्क. दिस 5, 4, 3, 2, 1 टेक्निक से मेरा मतलब है जो चीज करनी है, जो तुम्हें लगता है कि वो चीज तुम्हें करनी है, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे पहले माइंड बीच में आए, जस्ट शाउट फ्रॉम विद इन. अंदर से शाउट करो 5, 4, 3, 2, 1 एंड डू दैट. फॉर एग्जाम्पल यू गेट अप इन द मॉर्निंग. मेरा तो हमेशा ये मानना है कि सुबह जितनी जल्दी बंदा शावर ले ले, नहा ले, दिन का आउटपुट इंक्रीज हो जाता है. एंड यू सीन दैट आवर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, आवर ग्रेट पेरेंट्स, कितनी बार हुआ है कि हमारे सुबह उठने से पहले उनका मेडिटेशन हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, मतलब they have taken a shower, mom has prepared the breakfast for the entire family. कहाँ से? It starts off with rise and shine. That is, you get up in the morning, taking a quick shower, and this also has been proven that water is magic. बट कई बार होता है सुबह उठ के आई कीप ऑन डिलेइंग द इनएविटेबल कि मैं चलो बाद में नहा लूंगा. करना क्या है? 5, 4, 3, 2, 1 गो एंड टेक अ शावर. एफआर का मेरा पेपर है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, या मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर है, या मेरा डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर है. इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जो कि मेरा एक नेगेटिव पॉइंट है, मेरा एक वीक पॉइंट है, और मेरा मन करता है कंफर्ट जोन में जाने का कि चलो मैं कल पढ़ लूंगा,
अभी रेस्ट कर लेता हूँ, बाद में पढ़ लूंगा। दिस 5 4 3 2 1 टेक्निक तब काम आती है। मीन्स वो सब्जेक्ट टफ है, इससे पहले माइंड ये बोले सब्जेक्ट टफ है, ओपन दैट बुक एंड स्टार्ट गोइंग फॉर इट। अब ये तो है नहीं कि कोई सब्जेक्ट रॉकेट साइंस है। हमारे इंस्टीट्यूट का एक पेपर हुआ करता था, प्रियंका मैम वेरी वेल नोज अबाउट इट, अमित जी नोज अबाउट इट, आकाश जी एवरी चार्टेड नोज अबाउट इट। इसका कई दोस्त बोलते थे इसका अभी तो है किसका। लोगों को एकदम टेंशन आ जाती थी कि यार ये इंस्टीट्यूट ने ये सब्जेक्ट दिया क्यों है, फायदा क्या है। एंड लोगों के लिए कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता था ये सब्जेक्ट क्लियर करना। जैसे आप आकाश जी प्रियंका मैम से बीन अ प्रिविलेज पहले मिले हुए, and it's a wonderful feeling to see the trainees turning out to be so successful, and blessings with them always. वैसे ही कभी मेरा शैली चौधरी से मिलना हुआ। शैली चौधरी ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आई है आज से कुछ साल पहले सीए फाइनल्स में। तो जब मैं शैली से, अब तो खैर एमसीएस हुआ है जो चार्टेड को क्लियर करना पड़ता था, 15 डेज हमारे मंदिर इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम, उस टाइम जीएमसीएस करके नाम होता था। तो जब मैं शैली को ट्रेनिंग के दौरान उन सेशंस में मिला तो एटलीस्ट मुझे पता भी नहीं था कि एटलीस्ट शैली के इसका में 100 में से 98 आए हैं, 100 में से 98। शी क्रिएटेड मैजिक, मतलब पूरा इंस्टीट्यूट ही एकदम हिल गया था, उछाल आ गया था यार। 98 इंस्टीट्यूट क्या, मतलब इंस्टीट्यूट के सभी लोग हिल गए थे यार, ये क्या हुआ, कहाँ लोग क्लियर नहीं कर पा रहे, शी इज गॉट दैट 98। तो मैंने शैली से पूछा कि यार राज क्या है, 100 में से 98 लोग क्लियर नहीं कर पा रहे। यू नो व्हाट शी सेड, सर वन ऑफ दोज रीजंस वर, जो मैं इंटर में इतनी बार फेल हुई, जितनी बार फेल हुई उतनी बार मुझे मेरी टीचर की बात याद आई कि कभी जना फेल नहीं होता, फाउंडेशन मजबूत करता है। और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मेरे साथ हमेशा था, कुछ नहीं होता, 6 महीने बाद एक और अटेम्प्ट आएगा, कोई इशू नहीं है, वी आर देयर विद यू। बट मुझे खुद फील होता था कि यार मैं क्लियर क्यों नहीं कर पा रही। एंड ऑफ द डे वी ऑल नो राइट, जब हमारा एग्जाम क्लियर होता है या गॉड फॉरबिड अगर सक्सेसफुल नहीं बन पाते, चाहे कोई इतना सिंपैथी भी शो करे, अल्टीमेटली हमें पता होता है कि यार कितना दुख हो रहा है अंदर से, राइट। और हमारे अंदर क्या चल रहा है वो खाली हम जानते हैं, उसके बाद ही शायद कोई और जना जान पाता है। एंड शैली सेड इट मेड मी मोर स्ट्रॉन्गर। और मुझे याद आया कि जैसे कहते हैं ना कि तप के सोना निकलता है, अगर मुझे वो गुलाब का फूल चाहिए तो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि भाई कांटे तो हाथ में लगेंगे ही लगेंगे, दैट इज फॉर श्योर। सो डोंट बी स्केयर्ड कि मेरी अभी तक कोई तैयारी नहीं है, मुझे अभी तक कुछ भी नहीं आता, बिकॉज एंड ऑफ द डे इफ आई नो 5 4 3 2 1 टेक्निक करना क्या है, आई जस्ट नीड टू ओपन द बुक एंड आई जस्ट नीड टू स्टार्ट, एंड आई जस्ट नीड टू स्टार्ट। कहते हैं जिसने शुरुआत नहीं करी वो कभी फुल स्टॉप नहीं लगा पाएगा, शुरुआत नहीं है तो कभी अंत ही नहीं होगा। और कहते हैं अगर शुरुआत अच्छी है तो एंडिंग होने के चांसेस, सक्सेसफुल एंडिंग होने के चांसेस भी डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। सो रिमेंबर 5 4 3 2 1 टेक्निक तब यूज करनी है जब मुझे कोई चीज करनी है, और इससे पहले माइंड बीच में आए। माइंड 5 सेकंड्स के बाद आता है, तो इससे पहले वो 5 सेकंड्स बीते, जस्ट गो फॉर इट, just go for it, right? Similarly, a great popular technique would be, remember this, try मैंने ये नहीं बोला try unless you succeed, मैंने ये बोला try or change your approach but let your goal remain the same. Let me repeat what I said. Try or change your approach but let your goal remain the same. Exams में let's assume that you only have 15 days left. You cannot expect to go over the entire course. Goal क्या है? Exam clear करना. Approach क्या है? जो लगता है important chapters हैं, go for them, revise them, ताकि वो subject clear हो जाए, 40 आ जाए. Exam में काफी time है. Preparing you also for the future as well. टाइम में काफी अभी टाइम है एग्जाम के लिए. योर अप्रोच हैज टू बी कि भाई विद अ डेडिकेटेड टाइम टेबल कि मेरा पहली बार कोर्स इस टाइम तक हो जाना चाहिए, एंड पहली बार कोर्स में टाइम लगता है,
सो दैट सेकेंड टाइम में जब मैं रिवाइज करूंगा, थर्ड टाइम जब मैं रिवाइज करूंगा, कितने टाइम तक मेरा वो कोर्स हो जाना चाहिए। और मेरा हमेशा ये मानना है 2 घंटे लगा के मैंने एक चैप्टर खत्म करा, इससे बेटर है कि 2 घंटे में वो चैप्टर मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ लिया। बिकॉज मुझे लगता है जितनी बार मैं वो चैप्टर पढ़ूंगा उतना ही ज्यादा मुझे वो चैप्टर समझ में आएगा। जस्ट लाइक अ इंग्लिश पिक्चर, डायलॉग समझ में नहीं आते सारे, बट उसके बावजूद भी बाय द टाइम द पिक्चर गेट्स ओवर मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि वो पिक्चर कैसी थी। इट्स जस्ट लाइक आरसी एग्जाम्स ऑल्सो, दैट वंस यू स्टडिंग समथिंग, जरूरी नहीं है दैट वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन हर एक चीज समझ में आई, बट just as a great storybook, just go for it, just read that word by word. Priyanka ma'am out here is a live example. Once she was preparing for the exams, was she able to grab everything? Maybe not, but in spite of that she had gone over the course. She knew कि भाई course है क्या, मोटा मोटा result सामने है. That she is not Priyanka Arora, she is CA Priyanka Arora. Those 2 alphabets, which not only her but the entire community is proud of. As simple as that. आकाश कितने होंगे? आकाश सिंगल भी हो सकता है, but C आकाश single might be, C आकाश single might be relatively less. That is for sure. And C आकाश single as the Sikasa chairman, शायद ही कोई होगा. As simple as that. So see the magic of how your words create your future destiny. And कहते हैं ना कि like अगर मैं अपनी अप्रोच चेंज करते रहूं तो गोल आज नहीं तो कल जरूर मेरे पास है। इवन मैंने हमेशा ये माना है कि अगर एग्जाम में खाली एक दिन भी है तब भी मेरा फ्रेंड एग्जाम क्लियर कर सकता है, चाहे वो फाउंडेशन है, इंटर है या फाइनल है, प्रोवाइडेड ही नोज इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं और इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में पढ़ के क्या जाना है। दैट्स इट। मैंने ये नहीं बोला पूरा कोर्स, मैंने ये नहीं बोला सारे चैप्टर्स, बिकॉज एक ही दिन बाकी है। Important chapters and selective studies definitely works. During the time I was clearing these same exams, I got hold of a particular book. और जब मैं पढ़ रहा था उस बुक के एंड में लिखा था, एग्जाम टाइम में डोंट रेफर मी, यू विल गेट स्ट्रेस। आई सेड एक्सक्यूज मी, एग्जाम टाइम में मैं बुक ना पढ़ूं तो यार क्लियर कहां से करूंगा। नेक्स्ट लाइन में लिखा था, जब तुम मुझे पहले पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करते रहना, और जो इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन करी है उसको कहीं ना कहीं रजिस्टर में कॉपी कर लेना, और एग्जाम के दिनों में खाली उस रजिस्टर को रेफर करना। आई सेड आहा, बात तो मुझे समझ में आ रही है, बिकॉज मोटी बुक देख के एग्जाम में हर किसी को टेंशन रही है। फॉरगेट अबाउट यू, इंक्लूडिंग मी, एवरीवन इज गोइंग टू फील एंजाइटी। हर किसी के पेट में बटरफ्लाई जरूर होंगी कि पता नहीं कैसे होगा कैसे होगा, बट अ थिन रजिस्टर, शॉर्ट नोट्स, फ्लिप चार्ट्स ऑलवेज वर्क्स। लॉ के लिए मैंने हमेशा ये चीज खुद फील करी है, खुद इंप्लीमेंट करी है। इंपॉर्टेंट सेक्शंस अगर मेरे स्टडी रूम में सामने लगे हुए हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉज मेरे सामने लगे हुए हैं, एक्चुअली हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जो चीज दिखती है वो चीज हम इनवाइब करना शुरू करते हैं। जो चीज हम लिख के प्रैक्टिस करते हैं वो चीज हम जल्दी इनवाइब करना शुरू करते हैं। एंड टच योर हार्ट एंड टेल मी, जिन आपके ग्रेट टीचर ने कोई चैप्टर आपको स्टोरी के फॉर्म से सुनाया है, पिक्चर के फॉर्म से, कविता के फॉर्म से, कोई पोएम के फॉर्म से, एटसेट्रा, कितनी आसानी से वो कॉन्सेप्ट चैप्टर हमारे दिमाग में बैठा है। यही फ्लिप चार्ट्स, डायग्राम्स, और वो भी डेकोरेटेड फ्लिप चार्ट्स, डेकोरेटेड डायग्राम्स इमीडिएटली हमारे दिमाग को हिट करता है। आओ सीए खेल के एंजॉय करें, बंदे के मुंह पे स्माइल आती है। आओ सीए की पढ़ाई करें, हे भगवान, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बिकॉज पढ़ाई वर्ड खुद ही शायद एक नेगेटिव वर्ड है, डोंट टेक मी रॉन्ग, खुद ही शायद एक नेगेटिव वर्ड है, बिकॉज इट मेक्स यू वेरी कॉन्शियस, इट मेक्स यू फील स्केयर्ड। और यही अगर एक चीज है कि सीए एंजॉय करके क्लियर करते हैं। अब एंजॉय से ये मतलब नहीं है कि भाई एंड तक रख दिया, चलो हो जाएगा देखा जाएगा। एंजॉय से मेरा मतलब ये चीज है, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। और वहां पे आया मेरा नेक्स्ट सक्सेस मंत्र, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स,
try to impress yourself, because CA क्लियर करने से और किसी का फायदा नहीं होने वाला except you. सीधी सी बात है. And let me assure you, CA is not only a name, it is also a fame, it is also a ego, it is also a रुतबा. कहते हैं लोगों की ये शान बान आन है. जब वो इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को with a chartered accountant, there's a different feeling altogether. There's a different fire from within altogether. आइडिया अगर देखा जाए, और ये सब आपको बिल्कुल देख के क्लियर होगा. Once you look at Amit ji, you look at Priyanka ma'am, you look at Akash ji, Push ji, I'm also missing. I hope that I'll also be able to see his face very soon. एक बात तो क्लियर है, कोई भी जना को बड़ा नहीं लग रहा होगा. They all are so young, not only at heart, but including the way they are looking, handsome and such gorgeous personalities. मतलब clearing CA is not at all tough. It's all about being focused towards whatever you're doing. Amit ji would also endorse it. Same goes with Priyanka ma'am out here as well. It's all about, वो कहते हैं ना डायरेक्ट दिल से वर्ड्स अमित जी के वो चीज है कि यार मेडिटेशन जस्ट टू गेट दैट स्ट्रेस आउट. Where Priyanka ma'am says कि यार I enjoy whatever I'm doing. Results हमने. Both are great charters in the respective fields. So remember that. Don't do to impress any other person. Do to impress yourself. Things are going to work like magic. बहुत लोग बोलते हैं किस्मत ने साथ नहीं दिया या मेरी किस्मत अच्छी थी. I'll raise my hand. People like Steve Jobs would also endorse it. People like the great Ratan Tata ji would also endorse it. Our great president of a great temple would also endorse it. You make luck with your own efforts. You make luck with your own efforts. किसी ने बोला कि यार मेरी हाथ की रेखाओं में ये चीज लिखी नहीं थी. किसी महानुभाव ने बोला कि यार हाथ की रेखाएं भी तो किसी ने बनाई होंगी. So the important factor is, do you want to create history or you want to be part of the history? कहते हैं if you want to create history, so वो थोड़ा सा approach, थोड़े से efforts करने में कोई हार्म नहीं होना चाहिए. Otherwise हर कोई जना तो कभी ना कभी तो हिस्ट्री में डूब ही जाएगा. बट ऐसा जना जिसका नाम दुनिया जाने, अगर ऐसा नाम हमारा भी बन जाए, उलाला और क्या चाहिए. बट इफ यू वांट टू क्रिएट दैट हिस्ट्री, रिमेंबर दिस, स्टार्ट एंजॉयिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग. Once I said don't do it for others, do it for yourself. Start enjoying whatever you're doing. And it is very important कि अगर आपका वर्क स्टेशन, आपका स्टडी रूम है, पूरे के पूरे दिन don't remain in your study room. कई फ्रेंड्स को मैंने देखा है कि एक कमरे में बंद हो जाते हैं, उस कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे. रिजल्ट क्या है? बोर्डम. BOREDOM, बोर्डम. मोनोटनिटी, नेगेटिविटी, नेगेटिव फीलिंग्स. क्यों? पूरे के पूरे दिन एक कमरे में बंद है. You have to take as the next success mantra regular breaks with your subconscious mind in control. 10 मिनट की ब्रेक, और हर ब्रेक डिफरेंट रखो. कभी 10 मिनट की ब्रेक में you love watching maybe cricket, 10 मिनट हाइलाइट्स देख लिया, that's okay. कभी 10 मिनट की ब्रेक में you have a pet dog, उसके साथ खेल लिया. You love preparing food, कुछ देर खाना बना लिया, कुछ देर के लिए, just as an example, चाय खुद बना ली, कॉफी खुद बना लिया, या something like you prepared something to drink, नींबू पानी or something. क्या फर्क पड़ता है? Objective is give yourself a great break. और मुझे अभी भी याद है, one of my great, it's a great relationship with a great temple. 2004, अब 2022 चल रहा है. It's been 18 years now. One of my great council member friends, without naming him. So we were just having coffee पे चर्चा, not a चाय पे चर्चा. So he said, रवीश भाई, अगर सीए क्लियर करना है तो यार गर्लफ्रेंड जरूर होनी चाहिए. मैंने कहा यार क्या है यार, मतलब मजाक के लिए मैं ही मिला हूँ. He said सीरियसली भाई, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए. तो उस टाइम जब मैं ड्राइव बैक कर रहा था तो मैंने कहा मजाक तो नहीं करेंगे, बड़े लोग मजाक कभी नहीं करते, बिकॉज उनके मजाक में भी काम की बात जरूर छुपी होती है. तो I said यार उन्होंने कहा क्या? You know what he said? What does a girlfriend bring in our life?
someone with whom we can share our happiness, with whom we can share our sorrows. It makes us feel so comfortable, so relaxed. जितने भी boys यहाँ पे हैं, I'm sure they would all would agree. अब ये मैं कभी ये नहीं बोलूंगा प्रियंका जी से कि what does a husband mean to you? She says tensions. No ways. But again, with someone with whom you can share your happiness, yeah, you can share your light moments. And कहते हैं कि यार family हमेशा साथ रहती है. Tough times as well as good times. Every day break time में, and this thing always works. Listen to this very carefully. कभी ना कभी दिन में break time में मॉम डैड के जाके पैर दबा दो, उनका हाथ अगर दुख रहा है थोड़ा सा हाथ दबा दिया, सिर पे थोड़ा सा बाम वगैरह, बिकॉज एक जना जरूर देख रहा है ऊपर से, ऑलमाइटी, चाहे उसको हम लोग जिस नाम से भी याद रखें. कितनी बार ऐसा हुआ है कि जिन्होंने इन दिनों भी अपने माँ बाप, ग्रैंड पेरेंट्स, गुरु की सेवा करी है, कहीं ना कहीं से ऊपर वाले ने फल जरूर दिया है. और हमारे पेरेंट्स, गुरु ऐसे होते हैं कि उनकी हमेशा मुंह से एक ही चीज निकलती है, आयुष्मान भव, गॉड ब्लेस यू बेटा, और सक्सेसफुल बन के निकलो. बिकॉज ये दो ऐसे लोग हैं जो कभी जेलस नहीं होते. तो हमारे पास मर्सिडीज आ गए, BMW आ गई, फिर भी वो ये बोलेंगे शाबाश और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो. सो द फैक्टर इज कि यार इन दिनों 5, 10, 15 मिनट स्पेंडिंग टाइम विद देम इज गोइंग टू वर्क 360 डिग्रीज गाइस आपके फायदे में. वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ी देर उनसे बातचीत में क्या फर्क पड़ता है, 10-15 मिनट, या उनके साथ बैठ जाओ कुछ देर पढ़ने के लिए. लग रहा है तुम बैठे हो, नींद आ रही है. Remember, try or change your approach. Let the goal remain the same. कुछ देर खड़े होके घूम के कॉन्सेप्ट पढ़ लो. आज तक मैंने कभी अकाउंट्स ये नहीं देखा होगा रैंक होल्डर ने लेट के अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख रहा है. स्टडी टेबल होगी और बैठ के सॉल्व कर रहा होगा वो, दैट्स फॉर श्योर. लॉ मैंने बहुत कम देखा है कि जना बैठ के लॉ पढ़ रहा है. मेजोरिटी टाइम मैंने ये देखा है कि जना घूम घूम के लॉ, ऑडिट, इकोनॉमिक्स, व्हाटएवर द थ्योरी पेपर इज, वो घूम घूम के याद कर रहा है. क्यों? यूनिवर्सल है बिल्कुल. मैं तो ग्रैंड पेरेंट्स ने बचपन से मुझे यही चीज सिखा रहे हैं. अर्ली मॉर्निंग में जो कॉन्सेप्ट्स याद होते हैं वो बहुत जल्दी बंदा रिकलेक्ट कर लेता है, बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं. क्यों? बिकॉज यू वेक अप फ्रेश, फुल माइंड से. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो रिमेंबर दिस कि लग रहा है कि अगर तुम घूम रहे हो, थक गए, कुछ देर बैठ जाओ. लग रहा है बैठे हुए हो, आउटपुट निकल रहा है, कंटिन्यू. लग रहा है आउटपुट नहीं निकल रहा, मींस देयर इज अ प्रॉब्लम. अगर आउटपुट नहीं निकल रहा, देयर इज अ प्रॉब्लम. Try or change your approach. Let your goal remain the same. जैसे Amit ji, as the worthy chairman, I was having a word with my present colleague friend as the chairman of NIRC also as well. He said कि मेरे साथ actually यार रवीश, my friends love to call me with my very first name और मुझे बहुत अच्छा लगता है. I hate that sir word. तो he was sharing with me and he says, रवीश यार मैं अपने 1-2 आर्टिकल्स से यार परेशान हूँ, या रिजल्ट ही नहीं दे पा रहे. उनको मैं बार बार समझाता हूँ बट रिजल्ट नहीं दे रहे. सेम मिस्टेक. कॉन्सेंसस हम लोगों ने ये करा, जब मैं उनके साथ बात कर रहा था, कुछ लोग ट्रेनिंग कुछ पैसे डिस्कस कर रहे थे, आई सेड ट्राई एंड डेलीगेट टू समवन. और उस जने को डेलीगेट कर जो कि उनको ये बोले कि यार जितना भी चीज है आगे एक व्हाइट बोर्ड में जस्ट मुझे समझा दो, तुम्हें क्या चीज आई है, क्या चीज समझ में आई, और चलो ने गलत भी क्यों ना बोला हो, स्टार्ट अपलोडिंग देम कि वेरी गुड फॉर योर एफर्ट्स, वेरी गुड फॉर योर एफर्ट्स. कुछ महीनों बाद फीडबैक ये मिला मेरे दोस्त से कि यार रवीश उस आर्टिकल में चेंजेस आ गए हैं यार, कहाँ वो काम करता ही नहीं था कुछ, अब उसने काम करना शुरू कर दिया. आई सेड अप्रोच ऑलवेज, इफ यू आर एबल टू मॉडिफाई, रिजल्ट तो हमेशा बढ़िया रहेगा. रिजल्ट हमेशा बढ़िया रहेगा. सीधी सी बात है. इतिहास गवाह है कि जिन जिन लोगों ने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी अप्रोच चेंज करी है, जिन जिन लोगों ने ना सक्सेसफुल होने पर भी अप्रोच चेंज करी है, ये दोनों कैटेगरीज हमेशा इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है बिकॉज दे वर विलिंग टू चेंज. और इंग्लिश में लाइन आती है, द ओनली कांस्टेंट चेंज इन दिस एंटायर वर्ल्ड इज चेंज. हमारा इंस्टीट्यूट रिजल्ट सामने है, कभी भी क्वेश्चन पेपर सेम नहीं देता.
हमेशा चेंज करता है। जब मैं सीए जर्नी को अंडरगो कर रहा था तो मुझे ये फील होता था कि यार इतने साल हो गए, कोर्स सेम क्यों, कोर्स सेम क्यों। ये फीडबैक इंस्टीट्यूट तक भी पहुंचा। अब रेगुलर बेसिस पे कोर्स में चेंजेस आते हैं, मॉडिफिकेशंस होती हैं एंड रिजल्ट सामने है कि वी ऑल आर प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद आवर ग्रेट टेम्पल, विद दिस ग्रेट इंस्टीट्यूट, दैट इज फॉर श्योर। यही अगर मैं शगुन से पूछूं, यही चीज अगर मैं सौम्य अपनी फ्रेंड से पूछूं कि डू यू गेट नर्वस, शगुन बोलेगी यस रवीश, सौम्य वुड आल्सो एग्री, यस रवीश एब्सोल्युटली एग्री। वो नर्वसनेस का रीजन क्या है? दैट समहाउ वी आर नॉट फॉलोइंग दिस 5 4 3 2 1, माइंड गेम्स आने देते हैं जिसकी वजह से सेल्फ डाउट आ जाता है। सेकेंड चीज में क्या होता है, वी बिकम अ विक्टिम ऑफ आवर ओन थॉट्स। विक्टिम ऑफ आवर ओन थॉट्स का मतलब कि यार नहीं कर पाऊंगा, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम नहीं क्लियर कर पाऊंगा, तो खुद विक्टिम्स बन जाते हैं। कभी आप लोगों ने मरीज को देखा है? मरीज की डेफिनेशन क्या है? जो दवाई नहीं खाता। मरीज की डेफिनेशन क्या है? जो किसी बीमारी से उलझ रहा है। बट मोस्ट ऑफ अस, हम लोग मरीज नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी वी आर टेकिंग दैट पर्टिकुलर एक्शन which is in the right direction, रिजल्ट सामने है। हेल्दी बॉडी इज अ प्रोडक्टिव बॉडी। सो वहां पे आता है मेरा एक अगला सक्सेस टिप, सक्सेस मंत्रा। ड्यूरिंग दिस टाइम, गर्मी का टाइम है, प्लीज मेक श्योर दैट योर ईटिंग as well as your drinking habit. Don't take me wrong, ड्रिंकिंग से मेरा मतलब शायद वो पार्टी वाली ड्रिंक्स नहीं है। ड्रिंकिंग से मेरा मतलब समथिंग लाइक वाटर, नींबू पानी जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कीप ऑन हैविंग दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस। एग्जाम के टाइम में हैविंग समथिंग लाइक टेकिंग विद यू नारियल पानी, नींबू पानी, ग्लूकॉन डी, मैं कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं कर रहा जिससे बर्ब्स आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि अंदर से हाइड्रेटेड रखे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पढ़ाई करते हुए भी एवरी 1.5 hours just keep on having एक या दो सिप, if not more। खुद तुम देखोगे दिन का आउटपुट कितना निकल रहा है। आस्क एनी ऑफ द सक्सेसफुल पीपल, कभी भी किसी सीए के ऑफिस में जाके देखो, किसी बिग शॉट के ऑफिस में जाके देखो, ग्लास पानी जरूर भरा रहेगा। पानी फिनिश ऑफ होगा, द पीएन इज गोइंग टू कम एंड ही अगेन फिल इन अगेन। बट वो पानी का ग्लास सामने भरा हुआ क्यों? बिकॉज जो चीज एज अ सेड सामने दिखती है, वो चीज हमारा सबकॉन्शियस माइंड जल्दी अडेप्ट करता है। खाना सामने पड़ा हुआ है तो जना जल्दी खा लेगा। पानी की बोतल सामने पड़ी हुई है तो पानी की बोतल से जना टेम्प्ट होगा पानी का ग्लास डाल के पीने में। that's कहते ना, घड़ी डाली हुई है तो बंदा कई बार 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 देखता है, घड़ी नहीं डाली हुई तो उसको ध्यान नहीं रहता। वही वाली बात है। और कहते ना, हम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस करा है, आप में से जितने फ्रेंड्स यहाँ पे सीए फाइनलिस्ट हो, यू नो दैट इंटर के पेपर ने तब तक टेंशन दी जब तक क्वेश्चन पेपर सामने नहीं आया। एक बार क्वेश्चन पेपर सामने आता है, वो टेंशन कहाँ गायब हो जाती है आकाश जी, वो टेंशन कहाँ गायब हो जाती है नरेश दोस्त, वो सौम्या दोस्त, टेंशन कहाँ गायब हो जाती है। इसे पता नहीं रवीश टेंशन कहाँ चली गई, बिकॉज पूरा ध्यान क्वेश्चन पेपर के टुवर्ड जाता है, सॉल्व करने के ऊपर। मुझे अभी भी ध्यान है, एटलीस्ट अभी कुछ टाइम पहले सीबीडी था, द टाइम आई क्लियर्ड माय सीए टाइम, उस टाइम सीए फाउंडेशन था और अभी पेपर शुरू नहीं हुआ था। पास में मंदिर था, मंदिर की घंटी बज रही थी। मैंने कहा यार किस्मत देखो, मंदिर की घंटी, मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है। मैंने कहा कहाँ से क्लियर होगा। ऊपर से भगवान इतना दयालु, इतना काइंड कि पंखा ऐसे स्पीड पे चल रहा था कि मुझे बाबा रामदेव की बजाय करीबन कहीं ना कहीं कुछ पुराने गुरु याद आ गए कि यार, मैंने कहा इससे अच्छा था पंखा नहीं लगाते यार, काम बन गया होता। अब somehow एटलीस्ट पेपर करीबन कहीं ना कहीं पे अभी क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और एक बार क्वेश्चन पेपर क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि मतलब ना मंदिर की घंटी सुनाई दी, ना करीबन कहीं ना कहीं पे पंखे का ध्यान हुआ कि वो पंखा चल रहा है या नहीं चल रहा है, बिकॉज पूरा का पूरा ध्यान, पूरे का पूरा कंसंट्रेशन क्वेश्चन पेपर के टुवर्ड्स था। इसकी पार
Hence I said ये तहलका मचा सकता है अगर राइट डायरेक्शन में चल पाए, ये तबाही भी मचा सकता है अगर गलत डायरेक्शन में जाए। चॉइस इज आर्स शगुन, चॉइस इज आर्स प्रियंका जी, कि एंड ऑफ द डे इसको मैं किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ। एंड माइंड गेम्स को हटाने का वन ऑफ दोस ग्रेट मैजिकल टिप इज, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, जर्नलिंग। मैं जर्नल एंट्रीज की बात नहीं कर रहा, जर्नलिंग की बात कर रहा हूं। जर्नलिंग, आई डोंट नो अगर आप में से कोई जना जर्नलिंग करता है, हैट्स ऑफ टू यू। मे बी इन द एंड व्हेनेवर वी आर हैविंग अ Q&A, इफ एनीवन कैन कम फॉरवर्ड एंड कैन शेयर कि यस रवीश मैं जर्नलिंग करती हूँ या करता हूँ। जर्नलिंग से मेरा मतलब क्या है? जो भी माइंड में टेंशन है, अनुष्का दोस्त, नरेश ब्रो, जो भी माइंड में टेंशन है लिख डालो उस डायरी में 10-15 मिनट लगा के, कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं ये चीज कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। जर्नलिंग पता होती क्या है? जर्नलिंग एक ऐसा दोस्त है जिसके साथ तुम कोई चीजें शेयर कर रहे हो, बिकॉज माइंड को पता क्या चाहिए? एक ऐसा जना जिसके साथ तुम चीजें शेयर कर सको, जिससे बड़ा सुकून मिलता है। कई बार हुआ नहीं है कि हम एग्जाम देके घर पहुंचे, एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, मम्मी से खाना, मम्मी सुनो तो सही आज के एग्जाम में क्या क्या हुआ, प्लीज सुनो तो सही, सुनो तो सही। जैसे बेटा एक बार खाना तो खा लो, मम्मी वो बाद में, पहले प्लीज सुनो तो सही, प्लीज सुनो ना पहले। आई थिंक वी ऑल हैव अंडरगॉन दैट, कि कोई जना चाहिए एक बार सुन तो ले क्या चीज हुई है। सो जर्नलिंग जरूर करो, और एग्जाम के दिनों में जर्नलिंग स्ट्रेस को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी मनीषा दोस्त, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी नरेश ब्रो। इट्स गोइंग टू वर्क लाइक मैजिक। कोई भी टेंशन है लिख लो, कोई भी अच्छी चीज चल रही है लिख लो, बट रिमेंबर, अंडर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस दोनों खतरा, बिकॉज एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया अभी, बट आई एम वेरी 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 अंडर कॉन्फिडेंट कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, क्वेश्चन पेपर सामने नहीं आया तो तुमने जज कहां से कर लिया अपने आप को? अगर तुम अच्छे नहीं होते तो सीए तक कहां तक पहुंच गए होते? 12th कहां से क्लियर कर लिया होता, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। ग्रेजुएशन नहीं कर गए होते, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर यहां तक पहुंचे हो तो कुछ ना कुछ तो बात है तुम में। और कहते हैं जिनमें बात है वही लोग खास है, एंड यू गाइस आर खास, यू गाइस आर स्पेशल। हु नोज आप में से कितने लोग सुपर स्पेशल बनने वाले हो? Who knows, the best in each and every one of us is yet to come. अभी भी हमारे अंदर बेस्ट, अभी भी अंदर आना बाकी है। So remember that, don't doubt yourself, extremely important. Remember this, एग्जाम में एक हफ्ता है, you can plan your thoughts accordingly, कि आज मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, that's okay. एग्जाम में एक दिन है, plan your thoughts accordingly. मैंने यार पूरा सब्जेक्ट मेरा बाकी है रवीश, पता नहीं मैं कहाँ से क्लियर करूंगा। मैं सब्जेक्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये बोल रहा हूँ उस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ढूंढ लो ना, उस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से क्या क्या पढ़ के जाना है वो देख लो। बाकी तुम और आपके फेवरेट भगवान है ना साथ देखने के लिए। बट सबसे बुरी बात क्या है? गिव अप कर देना। और ये वाली बात नरेश भी मानेगा, इस बात को, ये वाली बात मनीषा भी जरूर मानेगी, कि उसने कभी ना कभी अपने दोस्त से जरूर सुना होगा। एग्जाम नहीं दिया, जब क्वेश्चन पेपर आया, यही मनीषा की दोस्त ने बोला, अरे यार ये तो मुझे आता था, मैं पेपर देने चली गई होती, मेरा क्लियर हो गया होता। मनीषा सर किसने रोका था? मैं तो तुझे बोल रही थी चली जाती, अटेम्प्ट दे देती, क्या फर्क पड़ता। नरेश का दोस्त क्वेश्चन पेपर देखा, नरेश के दोस्त को लगा यार बस की नहीं है, इतना टफ पेपर है, मैं तो क्लियर नहीं कर पाऊंगा। आधे घंटे के अंदर वो हॉल से भाग गया। अब बाहर कुछ गिफ्ट थोड़ी मिल रही थी कि जो जना सबसे पहले बाहर जाएगा उसको आईफोन देंगे, उसको कोई और गिफ्ट देंगे। नरेश बैठे रहा पूरे 3 घंटे, पेपर उसके लिए भी टफ था, बट कुछ ना कुछ लिखते रहा, कुछ ना कुछ लिखते रहा। नरेश की किस्मत ने भी साथ दिया। आई एम सॉरी, मैं किस्मत पे बिलीव नहीं करता, बट मुंह से निकल रहा है। कई उसने आंसर्स आसपास से सुन लिए, लिख लिए उसने, रिजल्ट आउट हुआ, नरेश सी है, बिकॉज नरेश 3 घंटे बैठे रहा, कुछ ना कुछ करते रहा वहां पे। और ये चीज हम दोनों ने सुनी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कई लोगों के लिए लाइन है, कई लोगों के लिए प्रैक्टिकल लेसन है। योर एफर्ट्स शुड नेवर एंड, वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट जरूर है, जहां मैंने बोला डेली बेसिस पे टेक अ शॉवर, मेरा ये रिक्वेस्ट है डेली बेसिस पे लुक प्रेजेंटेबल। ये मैंने काफी बार एटलीस्ट अपने हैंडसम डूड्स में देखा। मैं बॉयज नहीं बोलता, हैंडसम डूड्स बोलता हूँ, मैं गर्ल्स नहीं बोलता, गॉर्जियस फ्लावर्स में बोलता हूँ।
तो बहुत चीज मैंने अपने हैंडसम डूड्स में देखी है, बॉयज में एग्जाम के टाइम में दाढ़ी उगा के रखी हुई है, दाढ़ी बिल्कुल, कोई भी उनको देखे वन फाइन डे तो एकदम घबरा जाए, ये क्या हो गया, ये साधु संत कौन है। अब उनमें से कई से मैंने पूछा क्या हो गया, शेव क्यों नहीं करी यार, रवीश टाइम ही नहीं मिला, टाइम तो उनके पास भी था, बट एंड ऑफ द डे यही शक्ल जो डराती है। अब यही तुम अगर अच्छा दिख रहे हो, आउटपुट डेफिनेटली और अच्छा निकलता है। नरेश को भी अगर मैं देखता हूँ एक अच्छी फीलिंग आती है दैट ही इज ड्रेस्ड अप वेल, ही इज टेकन अ शावर, और जिस ध्यान से वो सुन रहा है रिजल्ट सामने। सेम आई कैन वाउच फॉर सौम्या, सेम आई कैन वाउच फॉर आकाश जी also as well, because remember this line, look great, feel great, be great, look great, feel great, be great। मतलब अगर मुझे ग्रेट बनना है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, लुकिंग ग्रेट। I don't know how many of us were watching Priyanka ji from the beginning till now. She's maintained that smile throughout on her face. Throughout on her face. आपको क्या लगता है उनको टेंशन्स नहीं है? Of course होंगी, पर वो स्माइल ऐसी चीज है जो हर टेंशन को अंगूठा दिखा देती है कि बहुत गलत घर आ गया है, ये यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो टेंशन पर पड़ोसी के घर चले जाता है कि यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है। So remember this, the power of positivity, the smile always works. जितना टफ सब्जेक्ट ट्राई करके देखना, घूमते फिरते हुए जितना मुंह पे स्माइल के साथ वो सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, उतना ही उस सब्जेक्ट के साथ दोस्ती हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। और कई बार लाइन निकलती है, हमें राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते, कि आज ये चैप्टर पढ़ा है दोस्त, कल दोबारा मैं तुझे रिवाइज करने आ रहा हूँ, दोबारा मैं तुझे रिवाइज करने के लिए आ रहा हूँ, बिकॉज तू मेरा दोस्त है। रिमेंबर एज अ सेड, किताबों को पढ़ने के लिए मत पढ़ो, उनको दोस्त बना लो। जितने अच्छे वो दोस्त बन जाएंगे उतना ही रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकलेंगे, विच इज अ फैक्ट, विच इज अ फैक्ट। और जो सब्जेक्ट आपके लिए टफ है वो हर किसी के लिए टफ रहा है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट दे डोंट गिव अप, दे आर इन दैट रेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर मेकिंग ग्रेट सेंस टू यू। रिमेंबर, जब भी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कुछ हुआ, डोंट इवन थिंक ट्वाइस इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, डोंट इवन थिंक ट्वाइस। अब ये मत सोचना क्वेश्चन पूछा, प्रियंका जी क्या सोचेंगी, अमित जी क्या सोचेंगे, आकाश जी क्या सोचेंगे, रवीश क्या सोचेगा, एंड सो ऑन। कुछ नहीं होता, जो जैसे भी क्वेश्चन है देखा जाएगा। सो रिमेंबर दैट कि यू हैव टू एंश्योर दैट यू आर ग्रेट इनफ फ्रॉम विद इन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एक मेरे फ्रेंड ने हाथ रेस करा है, मेरा ये रिक्वेस्ट है दोस्त, अपने क्वेश्चन को कुछ देर के लिए होल्ड कर ले, ताकि जैसे मैंने क्वेश्चन आंसर्स के लिए पॉज लिया, देन आई टेक केयर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो प्लीज रिमेंबर योर क्वेश्चन, भूल मत जाना। तो जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, प्लीज, जैसे प्रियंका जी ने मेंशन कुछ करा था, चैट में लिख दो क्वेश्चन, या अगर चैट में भी लिखना वो चीज नहीं है, मे बी यू कैन आस्क मी डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर राउंड में कुछ टाइम के बाद। जस्ट रिमेंबर दैट, जस्ट रिमेंबर योर क्वेश्चन। The other tip that I would love to share with you also would be, ये चीज मेरे से बहुत फ्रेंड्स ने पूछा है, every 6 months कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कि रवीश अगर एग्जाम में टाइम कम बचा है, आखिरी का 15 मिनट है और 3 क्वेश्चन बाकी हैं, तो क्या मैं एक क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट करूं, बाकी दोनों क्वेश्चन छोड़ दूं, या तीनों क्वेश्चंस करूं ठीक ठीक। मेरा यह मानना है तीनों क्वेश्चंस ठीक ठीक, बिकॉज एक क्वेश्चन में हो सकता है 20 में से 20 तो नहीं देगा, मे बी 20 में से 10 मिल गए, एग्जाम्पल अगर बहुत अच्छा करा। अगर तुमने तीनों अटेम्प्ट कर दिए ठीक ठीक टाइप, 10 में से ज्यादा नंबर मिलेंगे। हमें तो वो चीज करनी है ना जिसमें ज्यादा नंबर मिल रहे हैं। एंड ट्राई कि पेपर में कोई क्वेश्चन छूटे ना, और वहां पे एटलीस्ट आई वुड ऑल्सो एंडोर्स माई डैशिंग ब्रो जितेंद्र आउट हियर, and that would be कि every day कुछ घंटे लगा के मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करो, बिकॉज हमारा ये मंदिर ऐसा है कि जिन्होंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करे तो एग्जाम डेज में पेन काम करना बंद कर देता है, या पेपर पूरा हो नहीं पाता है, बिकॉज हैंड वर्किंग पोजीशन में नहीं है। वही वाली बात है, कार को अगर मैंने महीनों बाद चलाया तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, सालों बाद चला रहा हूं तो कार स्टार्ट नहीं होती है, बिकॉज इंजन खराब हुआ हुआ है, तो मुझे इंजन की ओवरऑलिंग करानी पड़ती है। ह्यूमन बॉडी भी ऐसे ही है। तो डेली बेसिस पे एटलीस्ट
कोई ना कोई मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस करते रहो। मुझे अभी भी याद है कि एटलीस्ट स्कूल एंड कॉलेज में इंक्लूडिंग पोस्ट ग्रेज में अच्छे परसेंटेज का रीजन ये था कि सैम्पल पेपर्स में प्रैक्टिस करता था। हमारे इंस्टीट्यूट का मॉडल टेस्ट पेपर्स आते हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर्स आरटीपीज हैं। हमारे फ्रेंड्स ने कुछ एग्जाम्स उनके टीचर्स ने उनको दिए हैं, उनसे क्वेश्चन पेपर्स मिल सकते हैं। जस्ट ट्राई एंड अटेम्प्ट दैट। सामने घड़ी लगा के 3 घंटा, और मेरे हिसाब से 3 घंटे के बजाय जैसे 2.25 घंटे हों, अलार्म बजा दो और छोड़ दो पेपर जितना हुआ है, एंड गेट दैट पेपर चेक्ड फ्रॉम समवन। और उसको बोलो टफ मार्किंग दे, टफ मार्किंग कि कितने नंबर आए हैं मेरे, सो दैट जब तुम मेन एग्जाम दोगे उन्हें तुम्हें टफ मार्किंग करिए तो योर माइंड वुड बी कि हाँ यार देख, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स के लिए मार्क्स करते हैं। जब तुम मेन एग्जाम देने के लिए जाओगे, सिंस तुमने इतनी प्रैक्टिस करी हुई है, तुम्हें पता क्या लगेगा, जैसे इंग्लिश में लाइन आती है, अनदर डे इन द पार्क। मतलब ये तो एक और पेपर है जो कि मैं एवरी डे दे रहा हूँ। एंड जिन लोगों ने मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करे हैं, तो उनके लिए जब वो एग्जाम देने जाते हैं, टेंशन बहुत कम होती है, बिकॉज उनका माइंड प्रिपेयर्ड रहता है कि यार ये तो मैं एवरी डे दे रहा हूँ पेपर, एक और पेपर आ गया। एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दी वर्स्ट जरूरी है, ताकि जब एग्जाम का पेपर आए, हिंदी में कितनी बार हुआ है, मेरे फ्रेंड बोलते हैं पेपर तो यार रवीश लड्डू पेपर था, इतना सिंपल पेपर था। मैंने कहा चलो, ग्लैड टू हियर दैट, ग्लैड टू हियर दैट। कई बार ये भी सुना पेपर बहुत टफ था, उन्हीं से मैं पूछता हूँ सैंपल पेपर अटेम्प्ट करे थे भाई, टाइम किसके पास है? मैंने कहा वही तो गलती आ गई, टाइम तो हर किसी के पास होता है, बट शायद तो वो 24 घंटे में से प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पाया कि वो 3 घंटे क्या है, वो 3 घंटे का अहमियत क्या है। एंड रिमेंबर एंड लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, एग्जाम के टाइम में अपने ये मोबाइल फोन्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब ब्राउजिंग, आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होगी, हर किसी के साथ होती है। डिस्ट्रैक्शन, मन करता है एक बार व्हाट्सएप मैसेज चेक कर लूं, मन करता है जरा एक बार यूट्यूब पे एक वीडियो देख लूं, मन करता है जरा एक बार क्योंकि कहानी घर घर की टाइप कुछ सीरियल्स वगैरह में देख लूं, जिनसे कुछ फायदा नहीं मिलता है। इट्स ऑल, आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इज दैट, बट मैं तो उसको चीप एंटरटेनमेंट बोलूंगा, इससे कुछ फायदा नहीं है आइडली। तो रिमेंबर दिस कि अगर आपको ये सीरियल देखने हैं तो ब्रेक टाइम में देख लो। रिमेंबर ऐसे दिन में एवरी फ्रीक्वेंटली छोटी छोटी ब्रेक लेते रहो अगर देखना है तो। अदरवाइज शट आउट ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज पता है डिस्ट्रैक्शंस क्या है? ये डिस्ट्रैक्शंस मैंने इसलिए क्रिएट करी हैं बिकॉज एज अ सेड मेरा माइंड को कंफर्ट जोन में जाना अच्छा लगता है। कंफर्ट जोन में कि चल यार मैं दोबारा कर लूंगा, दोबारा कर लूंगा, थोड़ा सा मुश्किल लगता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। बट रिमेंबर, whosoever has created history has sacrificed his comfort zone, बिकॉज माइंड में एक चीज बैठा लो। कुछ दिनों की बात है, अकबर एंड बीरबल, रिमेंबर एवरीवन, अकबर ने बीरबल से बोला, हे बीरबल एक ऐसी लाइन बता जिसमें खुशी भी हो एंड गम भी हो। बीरबल ने कुछ सेकंड सोचा एंड बोला, हे महाराज ये समय बीत जाएगा, ये समय बीत जाएगा। ऐसी लाइन है जिसमें खुशी भी है, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, मैंने बोला बस 1 हफ्ते की तो बात है, उसके बाद पार्टी, ग्रेट, यस 1 हफ्ते की तो बात है, खुशी। तुम यूएस गए, तुम्हारी फेवरेट कंट्री है, मैंने बोला दोबारा यूएस नहीं जा पाओगे, डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो गई? अरे यार ये समय दोबारा नहीं आएगा। तो एक ऐसी लाइन जिसमें खुशी भी है, जिसमें डिसअपॉइंटमेंट भी है। तो रिमेंबर दिस, ये वाला टाइम पास हो जाएगा, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लो, कहीं पे लिख के रख लो, दिस टाइम विल पास। ताकि लग रहा है ना कि यार ओ गॉड ये टफ टाइम है, ये टफ सब्जेक्ट है, कुछ टाइम की तो बात है यार, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, दैट्स इट। आफ्टर दैट एंजॉयमेंट डूड, आफ्टर दैट इट्स पार्टी टाइम। कुछ दिनों की तो बात है, क्या इशू है अगर बंदा 7 घंटे के बजाय इन दिनों 6 घंटे सो गया? रिमेंबर मैंने 6 घंटे बोला, या 5 आवर्स सोना जरूरी है। कई फ्रेंड बोलते हैं रवीश 18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं सीए फील्ड में। अच्छा 18 घंटे पढ़ने पड़ते हैं? मेरे तो मुंह पे स्माइल है ये सुन के कि मैं ही मिला हूं। नो वेज, आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है। इवन आई वुड से 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स ऑफ डेडिकेटेड स्टडीज डिपेंड करता है, डोंट टेक मी रॉन्ग। बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जो डेली 6 घंटे पढ़ के भी सीए पहली बारी में क्लियर कर गए, बिकॉज 6 घंटे में उनका आउटपुट
जनरेट हो जाता था। बहुत ऐसे लोग हैं जिसके लिए मैं भी हाथ रेस करता हूँ, लंबी रेस का घोड़ा, कि वो 8 घंटे पढ़ते हैं बट आउटपुट 4 घंटे का निकलता है। ठीक है यार, अगर वो 8 घंटे के बजाय 1-2 घंटे एक्स्ट्रा मार लें पढ़ने के लिए, हमें तो आउटपुट से मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबी रेस का घोड़ा और व्हाटएवर। रिमेंबर, जो जीता वही सिकंदर। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, दैट इज इम्पोर्टेंट। और अगर लगता है ना मनीषा को कि रवीश मेरे यार 12th में बड़े कम परसेंटेज आई थी, मनीषा 10th को याद कर, 10th में जब तेरी परसेंटेज अच्छी आई थी, सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा एग्जाम आगे क्लियर करने का। अगर लग रहा है कि तुम्हारा फाउंडेशन पहली बारी में क्लियर नहीं हुआ है, रिमाइंड योर सेल्फ, 12th तो पहली बारी में क्लियर हुआ है, इंटरव्यू पहली बारी में क्लियर हो जाएगा, फाउंडेशन पहली बारी में क्लियर हुआ है। इंटर का एग्जाम देते हुए रिमाइंड योर सेल्फ कि मेरा फाउंडेशन पहली बारी में क्लियर हुआ है, जो हर किसी का नहीं होता, तो मेरा इंटर भी पहली बारी में क्लियर हो जाएगा। रिमेंबर माई वेरी फर्स्ट टेक अवे, अगर सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा कंट्रोल में है, थिंग्स आर गोइंग टू वर्क लाइक मैजिक, दैट इज फॉर श्योर। बातें बहुत है कहने के लिए, बट अगेन आई वुड से दैट वाज द टाइम that was actually assigned to me. So let me take care of my friends' question and answers. Please feel free to ask me anything. And in the chat also, I'll share my email and the other details so that जो चीज अभी नहीं पूछ पाए वो तुम बाद में भी मेरे से पूछना, I'll revert back to you. So please, Priyanka ma'am or Severus coordinator, please help me in those question answers so that I can take care of them, please. Yeah, thanks, Ravish. It was a very informative session. Thanks. So let's start with question answer session. I have Yeah. few questions in the chat box also. So let me start one by one. Yeah. The first question, I am not naming the student, I am just asking the question. First question asked was how can we prepare well in audit exam? एक्चुअली ऑडिट को अगर मुझे क्लियर वगैरह करना है तो एक तो मेरे पास जो इंस्टीट्यूट के अब से पुराने पेपर्स वगैरह हैं, तो जस्ट रीड के इंस्टीट्यूट के प्रिस्क्राइब आंसर्स कैसे हैं, वो आंसर्स में एक्सपेक्ट क्या करते हैं, दैट्स वन। क्या उन्होंने इंपॉर्टेंस एटलीस्ट कुछ ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स को दिए हुए हैं, कुछ केस लॉज को दिए हुए हैं, कुछ कीवर्ड्स को दिए हुए हैं। बिकॉज जैसे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, रिमेंबर इट्स अ बाइबल, तो जैसे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, जैसे स्पेशली इनका प्रीवियस पेपर जब आता है, जो उनका एटलीस्ट आंसर इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर्स के फॉर्म से देता है, जस्ट गो विद देम कि इंस्टीट्यूट ने कैसे प्रिस्क्राइब करें आंसर्स, फॉलो द सेम पैटर्न। अगर उन्हें पॉइंट्स में लिखा है पॉइंट्स में, अगर उन्हें पैराग्राफ्स में लिखा है पैराग्राफ्स में, डू नॉट डिविएट। कई लोग मिसलीड हो जाते हैं कि हमारे प्राइवेट कोचिंग सेंटर में टीचर ने बोला कि भाई पैराग्राफ्स में मत लिखो, पॉइंट्स में लिखो, बट यार हमारा पेपर तो इंस्टीट्यूट ने सेट करा है ना। तो अगर जैसे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल बनाया है, इंस्टीट्यूट ने जैसे पुराना क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा है, वो हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी बिल्कुल वैसे ही आंसर्स लिखें। और जब तुम खुद एक बार उन आंसर्स को लिखोगे, पता चल जाएगा कि 5 नंबर के लिए कितना लिखना है, 1 नंबर के लिए कितना लिखना है, 2 नंबर के लिए कितना, 10 नंबर के लिए कितना, and you can prepare your answers that way. Yes, please. Yes, Priyanka ma'am. Let's take care of the other question then. Priyanka ma'am, you're muted. Yeah. Priyanka ma'am, one more thing. Since मैं maximum questions ले पाऊँ, तो I'll be keeping on giving you hints कि उसको prepare कैसे करना है, कैसे आंसर करना है। किसी को अगर फिर भी डाउट है, elaborated आंसर कुछ चाहिए, प्लीज ईमेल या मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं डिटेल में शेयर कर दूंगा। Okay, next question please. Next question is, generally I have made strategy to prepare a subject, but at the end we don't have to cover a particular subject as whole as determined, and this demotivates us. Kindly advise how to tackle. Lovely question. My take in this case would be कि डिपेंडिंग अपॉन के एग्जाम में कितना टाइम बाकी है, अपनी प्लानिंग को रीस्ट्रैटेजाइज करते रहो। फॉर एग्जांपल, तुमने प्लान करा था कि आज मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं हो पाया किसी भी रीजन की वजह से, रात को सोने से पहले कुछ देर पहले, तब 1 घंटे पहले तो डिटॉक्स, मतलब अपने आप को डिटॉक्स कर लो, मीन्स कोई भी सोशल चीज, सब चीज से दूर, और उस 1 घंटे के अंदर कुछ 5 मिनट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, क्यों नहीं हो पाया वो चैप्टर, आज ऐसा क्या हो गया कि वो चैप्टर में कंप्लीट नहीं कर पाया, ताकि अगले दिन सेम मिस्टेक ना हो। एंड एवरी डे अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते रहो। जैसे क्रिकेट मैच होता है, जब तुम बैटिंग कर रहे होते हो डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है,
जब तुम चेजिंग कर रहे हो तो डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। कई बार ये होता है तुम्हारे ओपनर्स जल्दी आउट हो गए तो फिर स्ट्रैटेजी चेंज होती है। कई बार तुम्हारे ओपनर्स अच्छा टिक गए तो जो बॉलर एंड में बैटिंग के लिए आता, अगर उसको चांस मिलता, उसको टीम नंबर 3 पे भेज देती है कि जा और हिटिंग कर। अपने सीए एग्जाम्स का भी यही है, अपने स्ट्रैटेजी को बार बार मॉडिफाई करते रहो, चेंज वगैरह करते रहो। और रिमेंबर, पॉजिटिविटी माइंड के अंदर रखनी है कि यार मैंने सोचा था आज ये चैप्टर हो जाएगा, मैं डीमोरलाइज हो गया। यही मैंने चीज शुरू में सजेस्ट करी थी, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में रखो। आई एम द बेस्ट एंड आई नो इट, आई एम ग्रेट इनफ, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, कर लूंगा, कुछ नहीं होता। आज ये चैप्टर नहीं हो पाया, आज मेरी स्ट्रैटेजी फेल हो गई, कुछ नहीं होता, कल मैं कर लूंगा, कल मैं कर लूंगा, कल मैं कर लूंगा। ओम शांति ओम में था ना, किसी को इतनी शिद्दत से चाहा है, और यहाँ पे वो चाहत तुम्हारी तुम्हारी टूवर्ड्स है कि हाँ तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हुए, जब तुम खुद अपने आप से बात कर रहे हो, अपने आप को तुम पेप अप कर रहे हो कि मैं अगली बार कर लूंगा, अगले दिन कर लूंगा, अगली बार मैं सेम मिस्टेक नहीं करूंगा। बिकॉज सेम मिस्टेक को अगले दिन मत रिपीट करना। हो सकता है ज्यादा सो गए उस दिन, हो सकता है लेट के थ्योरी पढ़ लिया और वट एवर, डोंट मेक दैट सेम मिस्टेक। बिकॉज रिमाइंड योर सेल्फ, एग्जाम क्लियर कर गए रिजल्ट के थ्रू क्या तुम्हें मिलेगा, और लग रहा है पढ़ने का मन नहीं कर रहा, जो भी तुम्हारा इमोशनल फैक्टर है, मम्मी पापा ग्रैंड पेरेंट्स वट एवर, उनकी फोटोग्राफ को या तो डेस्कटॉप बना लो या मोबाइल का कवर बना लो या उनकी फोटोग्राफ दीवार पे लगा दो। लुक एट देम कि यार इनकी क्या गलती है, मेरे पेरेंट्स ने जिन्होंने मेरे ऊपर उम्मीदें रखी हैं, मेरे दोस्तों की क्या गलती है जिन्होंने मेरे ऊपर उम्मीदें रखी हैं। ताकि जब तुम्हारा ब्रेक लेने का मन करे ना, कंफर्ट जोन में जाने का मन करे, जब तुम उनको देखोगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल फोकस रहेगा। तभी आई सेड कि दिमाग में नहीं, इनकी फोटोग्राफ लेके कहीं पे चिपका दो, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे भी ऑफिस वगैरह में एटलीस्ट ऐसी फोटोज वो चीज है जहाँ कई बार मेरा लेजी होने का मन करता है, मैं उनको देखता हूँ कि यार दे डोंट वांट मी टू गेट लेजी, और मेरी एनर्जी हमेशा बरकरार रहती है मॉर्निंग टिल द एंड ऑफ द डे। बिकॉज फोकस मुझे पता है मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। बिकॉज अगर मैं अपना ध्यान नहीं रख पाया, कल को मैं अपनी फ्यूचर फैमिली का ध्यान कहाँ से रखूंगा, राइट? प्लीज प्रियंका जी, कैन वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yeah, sure. The next one is I sleep a lot. How to deal with that? ग्रेट, कहानी घर घर की। अलार्म, लग रहा है अलार्म से फर्क नहीं पड़ रहा, अलार्म को दूर रख लो। फिर भी तुम्हें लग रहा है कि उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मॉम डैड की फोटोग्राफ पेस्ट करो जिस रूम में सोते हो, सबकॉन्शियस माइंड में ध्यान में रखते हुए। फिर भी अगर नींद आ रही है, अपने आप को इमोशनली ब्लैकमेल करो। जैसे वो भाग मिल्खा भाग पिक्चर में था, इसलिए वो हारा था बिकॉज उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। वो वॉशरूम में जाता है एंड फरहान अख्तर एज दी कैरेक्टर जिसने मिल्खा का पोर्ट्रे करा था, अपने आप को चांटे मारता है। शायद वही करने की जरूरत है, चांटे नहीं बट कि यार मैं दूसरे को धोखा क्यों दे रहा हूँ। फिर भी अगर नींद आ रही है, बॉस कलाकार हो तुम, कुछ नहीं हो सकता फिर तुम्हारा, सीधी सी बात है। तो फिर इन दैट के सीए छोड़ो, पेरेंट्स को बोलो खूब पैसा कमा लो, बिकॉज आपका बेटा तो निकम्मा है, कुछ नहीं करेगा, आपके पैसे से ही कुछ ना कुछ काम करेगा, वैसे कर लो। और अपने नाम के आगे कैटेगरी डाल दो, निकम्मा सो एंड सो, लोगों को बोलो मुझे उस नाम से बुलाओ, अपने आप झटका लगेगा। देखते हैं कैसे तुम्हारी नींद नहीं खुलती। एक दिन मैं कुछ इंटरव्यू सुन रहा था, नवजोत सिंह सिद्धू, ही सेड अलार्म क्या होता है, मैं तो बिना अलार्म के उठ जाता हूँ। मैंने कहा यार सिद्धू यार ये क्या बोल रहा है, बहुत पुरानी बात है। ही सेड अगर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात क्लियर है ना कि तुम्हें उठना है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने आप नींद खुलती है। सिद्धू का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, एक वो वाला दिन और एक आज का दिन है। आई एम अ मेंबर ऑफ 5 AM क्लब, हर रोज सुबह 5 बजे का अलार्म होता है, बट 5 से पहले मेरी नींद खुल जाती है, हमेशा खुल जाती है, 4:15, 4:30, 4:45। क्यों? बिकॉज मेरा सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि अगर मैं लेट सो के उठा मेरा दिन खराब हो जाएगा, आउटपुट नहीं निकल पाएगा। वो होता है सबकॉन्शियस माइंड का आइडिया। तो मेरा एंड में मैं यही बोलूंगा कि नौटंकी मत करो, ड्रामा मत करो, ढंग से करके आउटपुट जनरेट करो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। या यस प्रियंका जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Okay, so next one is so kindly guide us which elective paper in CA final is good for scoring. एक्चुअली ये बोलना बहुत खतरनाक रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते। तभी मैंने जानबूझ के इसका का एग्जांपल लिया था, बिकॉज अगर इसका में भी 100 में से 98 आ रहे हैं, एवरी पेपर इज स्कोरिंग। माइंड में लेके चलो, एवरी पेपर इज स्कोरिंग, हर पेपर में मार्क्स आ सकते हैं। डिपेंड्स कि भाई उस सब्जेक्ट को तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में कितना स्ट्रांग मानना है। कई लोगों के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रांग होते हैं, कई लोगों के लिए थ्योरी स्ट्रांग होते हैं, बट मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके लिए दोनों स्ट्रांग हैं।
आपके लिए अगर प्रैक्टिकल स्ट्रांग है इन दिनों, तो अपने प्रैक्टिकल को और रिवाइज कर लो बार बार, ताकि प्रैक्टिकल में नंबर कटने के चांसेस कम हो। और घूम घूम के थ्योरी बार बार रिवाइज कर लो, ताकि 40 की बजाय अगर 50 तक पहुंच पाओ। जिनका थ्योरी स्ट्रांग है, कोशिश करो कि 60 अगर 70 पहुंच पाए, ताकि प्रैक्टिकल 40 अगर 45-50 पहुंच पाए। जहां तक हो सके दोनों को अगर स्ट्रांग लेके चलो तो बेटर है। कितने ऐसे लोग हैं जो रैंक इसलिए नहीं ले पाए, 5 नंबर से रह गए, बिकॉज थ्योरी में उनके 40-40 ही थे, प्रैक्टिकल में 80s में आ रहे थे, 70s में आ रहे थे। तो माइंड में ये लेके चलो कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं दोनों चीजों में कंट्रोल कर सकता हूं, चाहे वो इलेक्टिव अपने सब्जेक्ट से नॉन इलेक्टिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आई एम क्लियर टू द पर्टिकुलर फ्रेंड who's asked that question. Please, Priyanka ji, next. Yeah, next one is, sir, I got very nervous as I read the question paper in first 10 minutes in the exam hall. It looks like I didn't remember anything. Lovely question. पानी की बोतल, पानी का ग्लास has to be there. एग्जाम शुरू होने से पहले ब्रीद इन ब्रीद आउट 1 2 3 4 मिनट के लिए ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए जो भी आपका फेवरेट गॉड है, जिनको आप मानते हो, साईं बाबा, जिनको भी मानते हो, उनको कुछ देर के लिए ब्लेसिंग्स, उनकी वर्शिप कि हे ईश्वर, मैं मेहनत करके आया हूँ, प्लीज मेरी सहायता जरूर करना। कुछ मिनट मोरलेस। पानी की बोतल आपके पास हैंडी होनी चाहिए। क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन पेपर सामने मिलता है उससे पहले, पेपर मेरा बहुत अच्छा होगा, मैं तैयारी करके आया हूँ। कॉन्फिडेंस, नॉट अंडर कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। लग रहा है क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आ रहा, भूल जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा, भूल जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आता, भूल जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आता, भूल जाओ। 8 क्वेश्चन है, 5 6 7 8, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, मैं ये नहीं बोलता अगले अटेम्प्ट के बारे में सोचो, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, बैठो 3 घंटे उस टाइम, बना के लिखो कुछ मिलता जुलता। देखो कहीं से अगर कुछ हेल्प मिलती है, हवा से, कहीं ना कहीं से मिलता जुलता बना के कुछ ना कुछ लिखो। हो नो शायद पेपर इतना टफ था, माइट ही माइट गेट 40, बट अगर बहुत बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 सबसे सिंपल था, बिकॉज उस टाइम हमारा इंस्टीट्यूट का पेपर चेकर ये चाहते हैं कि स्टूडेंट जिसने क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करा है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बिकॉज ये एंजाइटी हर किसी स्टूडेंट के साथ होगी, इंक्लूडिंग रैंक होल्डर, बट रैंक होल्डर को पेपर शुरू करने से पहले ये मंत्र सिखाए जाते हैं, उसको क्लियर होता है कि हाँ यार, मुझे टेंशन में नहीं जाना, मुझे थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन वगैरह के थ्रू, उसके बाद जहां पे भी वो नर्वस है, हो जाएगा, कुछ नहीं होता, दैट्स ओके। मैं अगले क्वेश्चन पे स्किप कर लेता हूँ, अगले क्वेश्चन पे स्किप कर लेता हूँ। और ये मैजिक होता है जो टेंशन को रिलीफ करने में हेल्प करता है। तभी वो नींबू पानी क्यों बोला जाता है, ग्लूकोन डी क्यों बोला जाता है, बिकॉज स्ट्रेस क्या करती है, अंदर की एनर्जी मार देती है, हाइड्रेट कर देती है, डिहाइड्रेशन बेसिकली। तो अगेन कहीं ना कहीं पे अगर मैं रेगुलर पानी वगैरह का इनटेक कुछ ना कुछ सिप्स लेता हूँ, तो वो एनर्जी मेरी बार बार वापस आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। तो ये छोटे छोटे से ये ऐसे टैक्टिक्स हैं जो बहुत बड़े हैं, आइडली अगर उनको फॉलो करा जा सके। बिकॉज ये बातें जो मैंने आज करी हैं, सुनने की बातें नहीं करी हैं, ऑल दीज आर प्रैक्टिकल टिप्स which can help you even get a rank, provided you are implementing whatever has been discussed, whatever has been shared with you. And I have this experience which I can vouch. लोग एग्जाम नहीं देना चाह रहे थे, लोगों को पक्का था फेल हो जाएंगे, they attended these talks, how to clear CA exams, और उनमें से I swear on myself 70% लोगों का एग्जाम के बाद, एग्जाम के दिनों में फीडबैक आया, ओनली बिकॉज ऑफ द सेशन, ओनली बिकॉज ऑफ द टॉक, मैंने एग्जाम दिया एंड यू नो व्हाट रवीश, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया, एंड यू नो व्हाट, मेरी रैंक आ गई। कहा मैं एग्जाम देना नहीं चाह रहा था, मेरी रैंक आ गई। ये संभाल के रखना along with these tactics. Yes, Priyanka ma'am, next question please. Yeah. Sir, can you please suggest 5-month revision strategy for inter exam? Lovely question. 5 महीने कम नहीं होते। मेरा ये मतलब है कि मेरा ये मानना है कि एक तो ये डिसाइड कर लो कि एक ग्रुप दे रहे हो या दोनों, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनेगी। सेकंड, मेरा तो हमेशा ये मानना है कि दोनों ग्रुप एक साथ देना जरूरी है, साथ साथ जरूरी इन द सेंस कि एग्जाम्शंस का हो जाता है, सेट ऑफ का क्राइटेरिया हो जाता है। एक ग्रुप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, एक ग्रुप उतना कि जस्ट क्लियर हो जाए, ताकि दोनों साथ साथ क्लियर हो जाए। फिर भी तुम्हें लग रहा है कि इतनी काबिलियत नहीं है, और तो कभी अपने ऊपर डाउट नहीं करना चाहिए। एक ही अगर ग्रुप का अटेम्प्ट कर रहे हो, तो फिर 5 महीने में ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए कि तुम्हारा ग्रुप या तुम्हारा पूरा रिविजन एक बार तो एटलीस्ट हो जाए, कम से कम एक बार। और अगर लंबी रेस के घोड़े हो तो 2 बार रिविजन।
मतलब एक बार तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ में 2 बार रिविजन। इसके लिए रिमेंबर जो मैंने एक लाइन बोली है, 2 घंटे लगाना बेवकूफी है एक चैप्टर पे, 1 घंटे में 2 बार पढ़ना अकलमंदी है। नहीं समझ में आ रहा, पढ़ते रहो, कंप्लीट कर लो चैप्टर, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को क्या लगेगा, चैप्टर हो गया एक बार, दोबारा पढ़ो सेम चैप्टर। सबकॉन्शियस माइंड को क्या लगेगा, मैं तो दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, तीसरी बार पढ़ो चैप्टर को, चौथी बार, पांचवी बार। 1 घंटे में तुमने 5 बार पढ़ लिया, मेरे से लिखवा लो कोरे पेपर पे। 1 घंटे में अगर तुमने 5 बार वो चैप्टर पढ़ा है, ज्यादा समझ में आएगा एज कंपेयर टू तुमने 2 घंटे में वो चैप्टर खाली 1 पेज पढ़ा है, 2 पेज पढ़ा है। यार समझ ही नहीं आ रहा है यार, मैं चैप्टर छोड़ देता हूँ। अरे यार, यू नॉट दी ओनली वन। कितने ऐसे लोग हैं जिनको पहली बार पढ़ के चैप्टर समझ में आ गया? नहीं, दे कीप ऑन री रिवाइजिंग, री रिवाइजिंग, री रिवाइजिंग। अमित जी यहाँ पे बैठे एग्री करेंगे, आकाश जी एग्री करेंगे। कौन ऐसा जना है जिसकी बैलेंस शीट पहली बारी में टैली हो गई थी? किसी की नहीं हुई थी। हमें से बहुत लोगों ने गालियां निकाली थी, क्या यार ये पता नहीं कहाँ कहाँ से एडजस्टमेंट आ जाती है, एंट्री आ जाती है। अब प्रियंका मैम को बैलेंस शीट तुम दो, ये टैली होती है, कैसे? शी इज बिकमिंग एक्सपर्ट इन दैट। बार बार ट्राई करा, बार बार ट्राई करा, बार बार ट्राई करा। अब देख के पता चल जाता है बैलेंस शीट में क्या गलती है, कहाँ सॉल्व नहीं हो रही थी, अब देख के पता चल जाता है। ऐसे जौहरी पाक की नजर है, दूर से देख लिया यार इसमें ये गलती है, ये बैलेंस शीट वैसे टैली हो जाएगी। कीप ऑन रिवाइजिंग इट अगेन अगेन अगेन। और डेली बेसिस पे अपने टाइम टेबल में ब्रेक जरूर डालो। एक दूसरा, लॉजिकल टाइम टेबल। ये नहीं कि आज टाइम टेबल ऐसा है, रवि दूध का वाल में इतना मोटिवेट हो गया, इतना चार्ज अप हो गया, थैंक यू भाई, आज से तो मैं 20 घंटे पढ़ना शुरू करूंगा। मैंने कहा मेरे माथे पे लिखा है कुछ, कहाँ पॉसिबल है 20 घंटे यार? आज हो सकता है तूने 12-13 घंटे पढ़ लिए, कल डिमोरलाइज उठेगा कि मैं टाइम टेबल फॉलो ही नहीं कर पा रहा। मैंने कहा लॉजिकल टाइम टेबल बनाना भाई, जो तुझे भी लगता है कि तू ठीक से कर सकता है। तो लॉजिकल टाइम टेबल विद ब्रेक। और जो तुम्हारे सबसे प्रोडक्टिव आवर्स हैं, मॉर्निंग या नाइट व्हाटएवर, उस टाइम में अपना मुश्किल सब्जेक्ट पकड़ो। कई लोग का सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है सुबह का, तो सुबह के टाइम में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ो। और जो तुम्हें लगता है सबसे थकावट वाला टाइम है, उस टाइम में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ, जो तुम लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो। जैसे लोगों का लंच के बाद उनको नींद आती है एज एन एग्जाम्पल, तो उस टाइम में कुछ लिख लिख के प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और मेरा ये मानना है दिन में कभी मत सो, रात को नींद डिस्टर्ब रहती है। एक टाइम टेबल बना लो कि भाई रात को मुझे 11 बजे सोना है, 10:30 सोना है, व्हाटएवर इट इज, ताकि रात को नींद ना थके। वो कहते हैं ना छोटे बच्चे का एग्जाम्पल, दिन में माँ बाप उसको सोने नहीं देते कि रात को नींद डिस्टर्ब करेगा, तो उसको किसी तरीके से दिन में थकाते हैं ताकि रात में आराम से फुर्सत की नींद सोए और फैमिली को भी फुर्सत की नींद सोने दे। तो वन ऑल्सो हैज टू फॉलो द सेम वर्ड्स ऑफ विजडम विच इज इंपॉर्टेंट। और डेली बेसिस पे अपने लिए टाइम निकालो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, कि अगर डिविएशन हो रही है रात को सोने से पहले, जो मैंने आज के टॉक में बोला था, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू डिविएशन क्यों हुआ, ताकि अगली बार डिविएशन ना हो। और छोटे मोटे काम डेलीगेट कर दो, किसी को, खुद मत करो, डेलीगेट कर दो ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। जैसे मार्केट से सामान लेके आना है एग्जाम के टाइम में, खुद मत करो, किसी को डेलीगेट कर दो, सर्वेंट को, ब्रदर को, सिस्टर को, किसी और को डेलीगेट कर दो। या लग रहा है तुम्हें ब्रेक लेनी है, तब चले जाओ मार्केट 10-15 मिनट, सामान लेके आ जाओ। बट क्लियर होना चाहिए 10-15 मिनट की ब्रेक है, ये नहीं है वहां पे गए गप्पे शप्पे मारना शुरू कर दिया दुकानदार से, बात करनी शुरू कर दी दोस्तों से, क्या है ब्रेक टाइम है, घर में तो व्हाट्सएप अलाउड नहीं है, मार्केट में व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ। देन यू डोंट हैव अ राइट टू क्लियर सी एग्जाम्स। अगर अपने आप के साथ धोखा दे रहे हो, अगर अपने आप के साथ कमिटमेंट नहीं है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो टाइम टेबल होती है तुम्हारी अपनी अपनी कमिटमेंट विद ब्रेक्स, प्रॉपर रेगुलर ब्रेक्स, और हर ब्रेक डिफरेंट ब्रेक। एक बार टी ब्रेक, एक बार पेरेंट्स के साथ बैठ के ब्रेक, एक बार में भी अ टीवी ब्रेक और व्हाटएवर। और इससे पहले किसी का क्वेश्चन आया कि ब्रेक रवीश आप कितना फ्रीक्वेंटली सजेस्ट करते हो? एवरी 2 घंटे, 2 घंटे कहते छोटी सी ब्रेक ले लो 10-15 मिनट की, लंच ब्रेक ले लो प्रॉपर 15 आधा घंटे की, विच इज इंपॉर्टेंट। अब लंच ब्रेक का मतलब है इसके लंच करते हुए स्टडी बुक्स नहीं, उस टाइम कोई पिक्चर देख लो, कोई मैच देख लो। मैं तो एग्जाम के टाइम में वो कुछ कॉमेडी पिक्चर्स वो चीज़ देखता था ताकि उससे स्ट्रेस रिलीव आउट हो जाए। एंड यू लकी आज की डेट में कितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, कितनी, अब मैं कॉमेडी पिक्चर्स तो नहीं बोलूंगा, वो तो खैर बंद हो गई हैं, बट व्हाटएवर, जो चीज़ तुम्हें खुशी देती है। और उन लोगों के साथ टोटली कनेक्शन हटा दो जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो दोस्त गंदे दोस्त हैं, जो तुम्हें डराते हैं, गंदे रिलेटिव्स जो बोलते हैं तेरा पिछली बार भी क्लियर नहीं हुआ, इस बार कहाँ से होगा, इन लोगों को ब्लॉक कर दो अपनी लिस्ट से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑल नेगेटिव चीजें जिन्होंने तुम्हारे ऊपर शक करा है, भगवान उनके ऊपर शक करता है, तो वो किसी का दोस्त बनने लायक नहीं है। तो जो किसी का बनने का लायक नहीं है, उनको तुम भी इग्नोर कर दो तो बेटर है। दैट्स माय टेक। यस प्रियंका मैम, आई टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Yeah, sir, questions like list is very long, so I suggest ki students will mail you on that mail ID. Just taking the last question of the day. Thank you. Yeah. So Please. what's your advice? We should go with the group studies or individual study? लवली क्वेश्चन. मेरा हमेशा ये मानना रहा है पर्सनली, गाइस मैं चार्ट में भी कुछ कुछ लिखते जा रहा हूँ, डोंट गेट डिविएटेड. मेरा इंस्टा मैंने लिख दिया, ईमेल मेंशन कर दिया इन केस. तो मेरा हमेशा, मैं तो इंडिविजुअल स्टडी वाला बंदा रहा हूँ. ग्रुप स्टडीज से मेरा ये मानना था, मेरी कंसंट्रेशन हट जाती थी, बिकॉज वो लोग ब्रेक लेते थे तो ब्रेक सबकी ब्रेक बन गई, या मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो वो डिस्टर्ब कर देते थे, या इस चैप्टर का रवीश बताना, इसके चीज बताना. तो मैं तो हमेशा इंडिविजुअल स्टडी वाला रहा हूँ. और बहुत बार ऐसा हुआ है कि घर में पढ़ाई नहीं हो रही तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली जाके, बिकॉज लाइब्रेरी के थ्रू करीबन मैं बाकी लोगों को पढ़ते हुए देखता था, तो वो जब ब्रेक लेते थे तो मेरे माइंड में ये आता था, यार ये तो मेरे से पहले से बैठ के पढ़ रहे हैं, अब जाके ब्रेक लिया है तो मैं भी ज्यादा पढ़ाई कर लूँ फिर मैं ब्रेक लूंगा. चाहे वो मेरे बाद आए होते और ब्रेक के लिए पहले निकल गए होते, बट मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे ये बोलता था कि वो 3 घंटे पढ़ने के बाद उन्होंने ब्रेक लिया, तो अभी खाली 1-1.5 घंटा हुआ है, तो और पढ़ फिर ब्रेक लियो. तो बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू. आई डोंट वांट टू साउंड डिप्लोमेटिक, बट अगर बचपन से तुम्हारी हैबिट ग्रुप स्टडीज वाली रही है तो ग्रुप स्टडीज कंटिन्यू कर लो, बिकॉज उनके थ्रू तो अगर तुम्हें मोटिवेशन मिल जाती है तो. बिकॉज मुझे बचपन से इंडिविजुअल स्टडी में हेल्प करी है, तो मैं कभी ग्रुप के टुवर्ड्स कभी नहीं गया. 2-3 बार मैंने ट्राई करा है, बट उस ग्रुप स्टडीज से मुझे लगता था मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बिकॉज उनमें से कई लोग गप्पे शप्पे के मूड में होता था तो मेरा फोकस हटा देते थे. तो देन आई रियलाइज कि नहीं यार, मैं वो ग्रुप स्टडीज के फेवर में नहीं हूँ, आई विल गो फॉर इंडिविजुअल स्टडीज. So that depends on you. Yeah. Sir, just last question is like it was, I think, related to the one student is saying like it is just 4-5 days for my exams, remaining for our exams till Yeah. now. He hadn't practiced a mock exam. So they go for it now or not? You should. मेरे से लिखवा के रख लो जिसमें फ्रेंड ने भी क्वेश्चन पुट अप करा है. अगर मॉक टेस्ट तुम्हारे एवरी डे प्रिपेयर हो, प्रैक्टिस हो गए ना, जितने भी तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स आएंगे +5, कम से कम बोल रहा हूँ, +5 तुम हर सब्जेक्ट में जोड़ दो, हर एग्जाम में जोड़ दो. अदरवाइज क्या होगा, एग्जाम तुम देने जाओगे, तुमने मॉक टेस्ट प्रिपेयर करा नहीं हुआ, पेन ठीक से काम नहीं करेगा, एकदम नर्वसनेस और बढ़ जाएगी, तैयारी तो करी नहीं. पता चलेगा क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट कर रहे थे, पहले क्वेश्चन में 1 घंटा लग गया, 2 घंटे बाकी हैं, 7 क्वेश्चन करने, ये हाथ हिलना शुरू हो जाएगा, टेंशन आनी शुरू हो जाएगी. ओ गॉड, क्यों? तुमने प्रैक्टिस ही नहीं करी है. इसलिए मॉक टेस्ट हर कोई जना जो सक्सेसफुल बनता है, हर कोई जना मॉक टेस्ट प्रिपेयर प्रैक्टिस करके जरूर जाता है. 5 दिन कम नहीं होते. मैं कहता हूँ वो 3 घंटे निकालना मुश्किल नहीं है. अपनी प्लानिंग को प्रायोरिटाइज कर लो कि भाई ये चैप्टर्स मुझे पढ़ने हैं, मेरे वीक पॉइंट्स हैं, और एवरी डे मुझे 3 घंटा कोई ना कोई मॉक टेस्ट प्रिपेयर जरूर करना है. एक बार आइडिया लग जाएगा मेन एग्जाम में जाने से पहले. एक चीज, कोई भी क्रिकेटर, बॉलर या बैट्समैन मेन मैच खेलने से पहले अगर तुमने देखा है, फील्ड में आता है, कुछ प्रैक्टिस करता है पहले. क्यों? बॉडी को वार्म करता है, बॉडी को वार्म अप करता है. फिर वो जाते हैं अपने चेंजिंग रूम में, शावर लेते हैं, तैयार होते हैं, फिर बॉलिंग करने आते हैं, बैटिंग करने आते हैं. क्यों? ताकि वो अपने आप को शेप में लेके आ रहे हैं. कभी भी जना जब कोई कार ड्राइव करके निकलता है, सबसे पहले कार इग्निशन ऑन करता है और कुछ सेकंड्स वो कार को घूम व्हाटएवर, फिर वो एसी वो चीज ऑन करेगा, उसके 1 मिनट के बाद वो गाड़ी बढ़ाता है. कभी ये नहीं हुआ उसने इग्निशन ऑन करके जूम करके निकल गया. फ्लाइट को भी देख लो, पहले प्लेन घूम करके वो चीज होता है, फिर वो रनवे पे जाता है एंड फिर फ्लाइट टेक अवे होती है. कभी हुआ है किसी पायलट ने इग्निशन ऑन करके सीधा ऐसे प्लेन उड़ गया? प्लेन नहीं उड़ेगा, सब लोग उड़ जाएंगे. सो हेंस माय टेक, 5 दिन कम नहीं होते भाई. विशेष हैं, अटेम्प्ट जरूर कर, एंड यू विल बी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ अस. थैंक्स रवीश फॉर गाइडिंग दिस. मॉक टेस्ट इज गोइंग टू बी मैजिक. जरूर प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट, ईच एंड एवरी वन. जरूरी है, ब्रह्मास्त्र है. और एज ए सेड, जर्नलिंग भी जरूर करो 10 मिनट लगा के. जो भी टेंशन वगैरह है डायरी में लिख लो. जितना डायरी में लिखोगी उतनी एक अच्छी फीलिंग आएगी कि स्ट्रेस मैंने बाहर निकाला है. या और इससे पहले प्रियंका मैम कोई मेरे से क्वेश्चन हो, वो चीज हो, मैंने अपना ईमेल, इंस्टा, मोबाइल नंबर, लिंक्डइन, ये सब चीजें मैंने इनकॉर्पोरेट वगैरह कर दिया है. एंड इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियो हैं, कोट्स वगैरह हैं इंस्टाग्राम पे, सेम गोज विद लिंक्डइन. यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी वो चीज है, छोटे छोटे से हैं. आई नो ये टाइम इज इंपॉर्टेंट, 2 मिनट 5 मिनट टाइप्स वगैरह. जब बीच में ब्रेक ले रहे हो कभी वीडियोस देख लो. दे विल ऑल्सो पंप यू अप, पेप यू अप, एंड हु नोज पास और रैंक में शायद वो चीज हेल्प वगैरह जरूर कर जाए. एंड कीप ऑन शेयरिंग दैट फीडबैक ऑल्सो विद मी.
मैं इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे भी हूँ. व्हाट्सएप पे आई ट्राई एंड रिवर्ट बैक एट द अर्लीस्ट. इमीडिएटली एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज हो सकता है मैं सेशन में हूँ, ऑफिस में हूँ, कहीं यहाँ पे बिजी हूँ किसी डेलीगेशन या कॉर्पोरेट्स और व्हाटएवर के साथ. बट जितनी जल्दी होगा मैं रिवर्ट जरूर कर दूंगा. प्लीज मेंशन शुरू में जरूर कर देना कि हम लोग कहाँ मिले और एग्जाम का अटेम्प्ट कब है. उसी बेसिस पे मैं प्रायोरिटाइज करके आई विल रिवर्ट बैक टू यू पर्सनली विद योर प्रॉब्लम. जरूरत होगी आई विल आल्सो गिव यू टाइम, विल टॉक ऑन द फोन. और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज तुम मुझे रिजल्ट लाके दे रहे हो. तुम मुझे रिजल्ट दो, मैं तुम्हें एफर्ट्स देता हूँ. और कहते हैं खाली मैं नहीं करूंगा, एफर्ट्स तुम्हें भी करने पड़ेंगे. यू गिव मी 100%, आई विल गिव यू मोर देन 100%. गारंटी मेरी है. और मैं तुम्हें सीईओ की पोजीशन देता हूँ बदले में, कि जैसे बोल रहा हूँ अगर तुम उसको फॉलो कर गए, तुम्हारे ऊपर है. या यस प्रियंका जी. Thank you so much, Ravish. I think let's finish our question answer session here. Thank you. Now I request Soumya Agarwal to please give the vote of thanks. Over to you, Soumya. Soumya, you need to Soumya unmute. And Soumya, before you start Right. with something, Am I really audible, impressed. sir? And I was really impressed looking at you, meeting you, and the way you were actually charged up. And really grateful to the other branch to shape such great personalities. Wonderful. Thank you, sir. It's being a immense pleasure कि हमने आपको दोबारा सुना. मैं आपकी खुद स्टूडेंट रह चुकी हूँ और मतलब after so many years, it was really great listening to you. एंड मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगी कि सर ने जो भी टिप्स दिए हैं, दे आर की टू सक्सेस. मे इट बी रिविजन, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सी एग्जाम्स. जब मॉक टेस्ट पेपर्स आर रियली हेल्पफुल. मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि मॉक टेस्ट पेपर्स के बिना आप कर सकते हो प्रिपेयर, लेकिन मॉक टेस्ट पेपर्स जो होते हैं वो ब्रह्मास्त्र होते हैं किसी भी सी एग्जाम के लिए. तो 3 आवर्स होते हैं आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आपको अपना 110% देना होता है उस 3 आवर्स में सक्सेसफुल होने के लिए. तो सर आपने जितने भी टिप्स दिए हैं सारे स्टूडेंट्स में होपफुली फॉलो करेंगे और अपनी स्टडीज में उनको यूज करेंगे. थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए. थैंक यू सो मच. Thanks to each and every one. Thank you, Soumya. I just want to ask our Sikasa Chairman C. Akash Singhal to say a few words, please. हेलो सर. नमस्कार सर. Akash. नमस्कार. थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया एंड इतने शॉर्ट नोटिस पे, वो भी इतने बिजी शेड्यूल में आपने टाइम निकाला. मुझे पता है कि आप स्टूडेंट्स के लिए एवरी टाइम आप इतना मोटिवेट करते हैं और इतना अवेलेबल रहते हैं. मैं सबसे ये बात शेयर करना चाहूँगा कि सर ने जैसे ही कहा कि मैंने कि स्टूडेंट्स के लिए इवेंट करना है, सर ने रेडीली मुझे कहा कि ठीक यार कैसे भी मैनेज करते हैं, शेड्यूल बड़ा बिजी है तो आउट ऑफ वर्किंग आवर्स करते हैं, अर्ली मॉर्निंग सेशन करते हैं. तो वेरी काइंड ऑफ यू सर. एंड दिस सेशन वेरी इंटरेक्टिव था सर, और वो ऑलवेज रहता है. वो स्टूडेंट्स के साथ साथ हम सब काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और हमारे लिए काफ़ी चेंजिंग है. मैजिकल सेशन रहा है ये आपका. तो वेरी थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग सच अपॉर्चुनिटी. आकाश जी, and believe me कि जो आपने मुझे ये गिफ्ट दी है ना, सीए बन के इस लेवल पे पहुंच के, तभी पता है मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता है जब मैं किसी फ्रेंड को बोलता हूँ ना कि मेरे ट्रेनीज चेयरमैन हैं, सीईओज हैं, पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं. बिकॉज ये कॉन्फिडेंस आपने मुझे दिया है, ये कॉन्फिडेंस प्रियंका जी ने मुझे दिया है, ये कॉन्फिडेंस सौम्य ने मुझे ये चीज़ दिया है. तो मुझे बहुत एक्चुअली खुशी मिलती है. और मैं मतलब ये मेरा हमेशा अनकंडीशनल सपोर्ट रहेगा अलवर ब्रांच ऑफ CIRC या ICAI के साथ. जस्ट अ कॉल अवे, जहाँ पे मेंबर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आपको कहीं भी सपोर्ट की ज़रूरत है. मेरा बाकी कॉर्पोरेट स्केड्यूल वगैरह सेकेंडरी है, बट ये कमिटमेंट टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूट मेरी हमेशा प्राइमरी रहेगी. बिकॉज मेरे यहाँ तक पहुँचने में एटलीस्ट इंस्टीट्यूट का इतना हेल्प है. बिकॉज आप जैसे फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट ने मुझे दिए हैं, तो मतलब उसके सामने तो कुछ भी नहीं है जो मैंने करा है. सो एज एंड वेयर पॉसिबल मेरा हमेशा सपोर्ट रहेगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर getting a smile on my face, Priyanka ji, Akash ji, for being so successful. That कल का मेरा एक friend, मेरा एक student is now taking care of the branch. He is the chairman, he is the vice chairman, and who knows the future presidents, CEOs. Makes me feel so happy, so
So ecstatic. God bless you. Thank you. Thank you very much, sir. And all participants, very much thank you. And my team, my managing committees members, very, very thank you. इतने short notice पे आप available हुए, इतना interactive section बनाया इसको, इतना successful बनाया. Thank you very much all of you. And मेरा ये request है, please ये video की recording if we can maybe YouTube में upload वगैरह करके, please share that link also with me, ताकि at least जो friends because of office या किसी reason की वजह से नहीं कर पाए attend, वो भी इसको बाद में as per their own convenient time attend कर पाए. It is on YouTube as well as on website also. Perfect. And जो friends ने attend करा है, please share the same with your friends also, so that they can also be immensely benefited from each and every talk that I have, shared, deliberated upon. Yeah. Amit ji साथ पहली बार मिलना हो रहा है, but I'm sure we'll meet again. Yeah, he just Amit Agrawal also want to share some of his views. Yeah, over to you, Amit. Amit ji, it's wonderful, a young dynamic leader. हेलो सर, आप पधारे हैं सर, बहुत अच्छा लगा सुनकर. आपने जो एडवाइस दी है, यकीनन मतलब कि एक ही टॉपिक, मतलब एक चैप्टर को 1 घंटे के अंदर 3 बार पढ़ लेना या फिर उसी चैप्टर को 3 घंटे देना, वो बहुत अच्छा सजेशन है. स्टूडेंट्स दे शुड फॉलो, इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा. और पानी का इसलिए सर कह रहे हैं बाबा पीने के लिए, क्योंकि पानी में खुद एक वाटर हैज इट्स ओन मेमोरी. अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे स्टूडेंट्स, तो पानी में खुद एक मेमोरी होती है. अगर आप कभी भी ग्लास लोगे हाथ में और उसको कहोगे सोने से पहले कि मुझे 5 बजे उठा देना, एंड जस्ट सबकॉन्शियस माइंड को लेके पानी में आप कहोगे, एंड या फिर मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस बेटर बना देना, डे बाय डे यू विल फील दैट चेंज इन योरसेल्फ. वाटर हैज इट्स ओन मेमोरी. So with that I also request sir, जैसे आपने कहा कि कोई सब स्टूडेंट है जिसके 98 स्कोर आए थे, ऐसे हम 2-3 स्टूडेंट जो है, जैसे ऑडिट हो गया, इसका हो गया, जो कि टिपिकल सब्जेक्ट्स है, इनमें जो हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स है उनको साथ लेकर आपके साथ एक सेमिनार हम जरूर करना चाहेंगे. आप बता दीजिएगा जैसे आप कोऑर्डिनेट कर पाए आप, तो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए वो भी अरेंज करना चाहते हैं सर. जो टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट्स है उनके साथ, आपके साथ लेकर एक सेमिनार हम कंडक्ट करना चाहते हैं, जिससे दे कैन शेयर देयर व्यू पॉइंट्स एंड दे विल हेल्प द स्टूडेंट्स इन स्कोरिंग वेल. ओवर टू यू सर. अमित जी, मेरा तो हमेशा बिल्कुल ये मानना है कि लवली सजेशन, और अगर फीजिबल वगैरह हो, मतलब आज ही इसका फाइनल वगैरह करके, ताकि कल के बदले आज ही एंड फाइनल करके आई विल ब्लॉक माय शेड्यूल अकॉर्डिंगली. दैट्स एब्सोल्युटली ओके. जहां पे लग रहा है कि स्टूडेंट को हेल्प वगैरह की जरूरत है, मतलब आज ही इसका फाइनलाइज करके लेट्स फिनिश इट ऑफ. डिले करने का कोई सेंस नहीं है. विल डू इट. राइट सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच सर. मोस्ट वेलकम. Yes, Priyanka. Okay, Ravi sir, thank you so much. Thank you all the students for a wonderful session, and sir, hope we'll see you soon again. Of course we would. And Delhi Albert bilkul bhi dur nahi hai. I hope the situation turns out to be really well, so that we can please meet face welcome to face. to our branch. Also, we'll welcome you also once for a physical seminar. We will be obviously grateful to have you here. Likewise. Chalo, blessings and have a great day to each and everyone. And good luck and blessings to all the students. Prepare well and make yourselves, family, your great institute and the Ravish proud. Good luck. All the very best. See you. Sayonara. Bye-bye.